एम्प्टी कप के साथ सब बैठेंगे, सो दैट आपको मैक्सिमम नॉलेज आप ग्रैब कर पाए, सिट लाइक अ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज पता क्या होता है ना, एब्जॉर्ब करता है, जो sit like a sponge and absorb all the things which speaker is going to tell you today, right? And if I talk about the speaker, trust me, like मेरे पास आज words short पड़ जाएंगे बात करने के लिए, right? Because the person who is going to come today, right, who is going to take today's session, right, he is like my godfather, right? And if I talk about myself, my name is Karan Jaiswal, right? एक बार मैं background की बात करूँ, मैं I was a software developer by profession, right? मुझे इस business में around 2.5 साल हो चुके हैं. This 2.5 years of this journey has changed my life, and there are few people responsible and for changing my life from whomever I am today. जो कुछ हो आज शायद कुछ लोगों की वजह से हूँ, and this person जो आज आने वाले हैं, he is one of the greatest examples, my godfather, जिसने शायद मेरी life में change में मेरे को help किया है, right? Not only me, he has changed the lives of many people. Trust me, if you just follow, if you can just copy this person for even 1%, 1% भी अगर copy कर सकते हैं ना, you will be a successful person, right? क्योंकि मैंने देखा है इस इंसान को working throughout to build people, right, to help people. He has that attitude of helping people and building people. He is the greatest epitome of success. Like वो होता है ना कि hard work, consistency, patience, perseverance, उसका real time example, राइट? ही इज दैट पर्सन जो एक रियल टाइम एग्जांपल है आपका है. आपने फाइनेंशियल्स में वो समझा होगा ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला कॉन्सेप्ट, राइट? वो फाइनेंशियल ग्रोथ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला कॉन्सेप्ट का ही इज द रियल एग्जांपल. आई हैव लाइक you will be able to witness that exponential growth, and he is one of the fastest growing person into the business. And trust me, like मुझे लगता है कि आज भी मैं अगर इस इंसान को अगर 10% भी कॉपी कर सकता हूँ ना, my life would be completely changed. Trust me, my life would be completely changed. And अगर आप लोग भी इस इंसान को अगर follow कर लिए ना, if you follow this person blindly, trust me, your life is going to change. And today's session is one of the most important session, and I don't want anyone to be distracted. And जिन लोगों ने please अभी तक video switch on नहीं किए, please switch on your videos, because trust me, आप लोग miss कर जाओगे ना, you are gonna miss a lot many things. So please don't be distracted for next 2.5 hours. Be in the zone, be at this place, because जो आज experience मिलने वाला है जिस इंसान से, if I talk about this person, like if I talk about this corporate background, right, he was already worked in the top notch MNCs, having a corporate experience of 8 years. He was an MBA in finance, right? He's known as a rich dad. इनको हम we call him daddy, right? हम उनको प्यार से daddy बोलते हैं because he is a rich dad. Trust me. And आज का जो experience, like इनके ना एक quality है जो I love the most, and most of the people love the most. He is very straightforward. जो है सीधा मुंह पे बोलना है, right? That's that quality of being straightforward, right? Has made this person whoever he is today, right? And he has not only made, he has made great leaders into the business, जिनकी वजह से शायद आज बहुत great leaders पैदा हुए हैं इस business में, right? And working, starting from very scratch, from very zero, when no one was there, he was there to support everyone, each and everyone. And you are going to learn from the best, the bestest person. So are you all excited? सब excited है to learn from the best, to learn from my guru, my mentor, right? And I look up to this person, like अगर बोल देना भाई ने बोला ना अगर ये करना है, that means I never question him. ये करना है मतलब करना है. I never question him, because I know whatever he will be telling me, वो मेरी ग्रोथ के लिए, वो मेरी सक्सेस के लिए, वो मेरे को और करीब लेके आ रहा है. So trust me, whatever this person is telling you, इसको एम्प्टी कप से बहुत ध्यान से सुनना एंड एब्जॉर्ब. जितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हो करो. मैं खुद अभी एब्जॉर्ब करूंगा बहुत ज्यादा, because I learn every day from this person. This person teaches me every day, every single second. I just want to learn, and today, like trust me, it's a great opportunity, right? And I'm feeling so blessed that this platform gave me this opportunity to talk about this person. As I told you, मेरे पास words कम पड़ जाएंगे इस इंसान के बारे में बात करने के लिए, right? So be attentive,
100% यहीं पे रहना है हम सबको. Let's not distract anywhere. So can I have this confirmation? Right? Let's be here. Let's go. Trust me, you're going to witness that personality, right? That person जिसका अभी 2 घंटे में ना, आफ्टर 2 hours when you look at yourself in the mirror, you will feel a change personality. आपको लगेगा अरे मैं बदल गया हूँ. You will feel that change, and trust me, you are going to feel that change. मैं practical बात कर रहा हूँ. So I'm not going to take much time of yours, right? मैं ज़्यादा time नहीं लूँगा आपका, right? Please help me welcome my mentor, my guru, my rich dad in the business, Suman bhai. Hey, thank you, Karan. Good I morning hope, bhai. yeah, hi. I hope I'm audible. Yes bhai. Great. So thanks for those kind words. मेरे को लगा किसी और के बारे में बातें हो रही है. My words are short for you. ऐसा कुछ नहीं है. Okay. So how are you guys? How are you all? I hope. Oh, you cannot talk. तो the constitution में होता है ना, right to speak, right to talk, और right to talk वाला जो portion है वो आपसे ले लिया गया है, right? So you can only listen to me, and जितना समझ में आएगा समझ लेना, जितना समझ में नहीं आएगा छोड़ देना. सब कुछ समझना जरूरी भी नहीं है, right? That is what I have been doing, right? एक बुक होता था जिसमें 15 चैप्टर्स होते थे. जरूरी नहीं है कि ना सारा के सारा पूरा चैप्टर समझ में आ जाए. 12 चैप्टर करेंगे, ढंग से करेंगे, उसी में 70 नंबर लेके आएंगे, लाइफ सेट है. दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू बिलीव, राइट? So I hope you people are doing well. You're not affected by corona, right? All of you are fine and doing good, right? So last 1 week, I hope it was good, because the first day of IM, you got to know about the industry from our upline, our mentor Prani Bhai, right? Then you got to know about the company YQNet, correct? And then you got to know the prospecting aspect of the business, why it is required. And then of course, Kriti ma'am, right? She must have come and she has spoken to you about the fuel of the business, that is the dream, correct? So today, I will not talk about the technicalities of the business. हम लोग कुछ टेक्निकल बातें नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्निकलिटीज नेक्स्ट स्पीकर के लिए छोड़ते हैं. So we'll talk about some non-technical aspect of the business, which has helped me grow and which has helped me to be where I am. Correct. So, how many of you have started the business and were uh, negative about this industry? कितने लोग ऐसे हो जिन लोग को ऐसा था कि ना कुछ भी हो जाए, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं करेंगे? How many of you? Can you please raise your hand? Okay, Sanjay, Bichu. Okay, okay, Gaurav. A lot of hands, right? Virinder. Okay, Ashwini. Okay, cool. So I was one of you, 5.5 years back. आज से 5.5 साल पहले, right? When I was working in Apollo Hospital, and I was doing good. ठीक है, एक जॉब करता हुआ बंदा, उसको क्या चाहिए होता है? एक जॉब करता हुआ बंदा, उसको ना जिंदगी में 3 ही चीज चाहिए होता है. वन, ही लुक्स फॉर अ गुड CTC, एक अच्छा सैलरी हो, राइट? दूसरा, एक अच्छा सा डेजिग्नेशन हो, राइट? और तीसरा, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक रेस्पेक्ट, एक रिकॉग्निशन, एक रेपुटेशन हो. यही चाहता है एक जॉब करता बंदा, यही चाहता है. एक ढंग की सैलरी, एक अच्छा सा डेजिग्नेशन, और लोग उसको रेस्पेक्ट करें. यही चाहते हैं. मेरे पास ये तीनों थे, राइट? I was working with the Apollo Hospital as an operations head. I was looking after the entire north of Apollo Hospital and Apollo Clinic का पूरा operations में देखता था. तो डेजिग्नेशन तगड़ा था, वो बहुत ऊपर वाला था. CTC सही था,
30 लाख का CTC हुआ करता था प्लस इंसेंटिव, राइट? तो 3 लाख रुपए के आसपास मैं कमा लेता था, एंड रेपुटेशन रिकॉग्निशन भी था बिकॉज आई वॉज अ परफॉर्मर, एंड ऑफ कोर्स आई वाज लुकिंग आफ्टर द एंटायर नॉर्थ. तो तीनों थे, राइट? बट तीनों चीज होने के बावजूद, राइट, व्हेन आई लुक्ड बैक एट माय 8-9 years ऑफ एक्सपीरियंस, मेरे को खाली एक चीज जो मेरे को पता चला, या जिसको मेरे को लगा कि यू नो जो 8 साल का मेरा जो जॉब था, द वर्क दैट आई हैव डन, ऑल दो मैंने पैसे कमाए, मैंने रेपुटेशन, सब कुछ मैंने कमाया, राइट, बट हाथ में कुछ नहीं था. बिकॉज व्हाट आई अंडरस्टूड वाज, जॉब करते हुए ना आदमी को 2 ही चीज मिलता है, एंड आई डोंट नो आपके पास होगा, शायद आपके पास होगा, आप लोगों के पास भी होगा जो लोग जॉब करते हैं. One, you get a credit card, right? And second, you get a loan. And you end up your life paying EMIs for the rest of your life. और जिसका पॉकेट जितना मोटा, उसके पॉकेट में छेद भी उतने मोटे, राइट? तो ऑल दो सैलरी अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, बट छेद इतने बड़े थे कि मतलब मेरे को लगा यार व्हाट एम आई डूइंग, राइट? एंड आउट ऑफ डेस्परेशन मेरे को लगा कि कब तक ये EMI और किस्तों की जिंदगी जिएंगे, राइट? And out of desperation, I was looking out for something for a very long time, and ultimately, this business came into my life. Or the person who recommended me, right? I didn't knew him. I am a cold sign up. Cold sign up क्या होता है? आपको पता चल जाए. Cold sign up मतलब I didn't knew him, he didn't knew me. We met in an interview. We got to know each other, and we started working in the same company, right? That is how we interacted, right? और फिर जब एक ही कंपनी में रहे तो काफी सारी बातें होती थी. मैंने उसको बताया कि 8 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे पास 12 लाख का लोन है, लॉट ऑफ लाइबिलिटीज, राइट? सो वी यूज्ड टू टॉक लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? वन फाइन डे, राइट, ही स्टार्टेड द बिजनेस, एंड मेरे को बोला कि मैंने कुछ स्टार्ट किया. मैंने बोला क्या स्टार्ट किया? बोला सही टाइम आएगा तो बताएंगे. मैं बोला ठीक है. So for 1 month, right, he didn't told me anything about what he was doing and all this, but I used to see him busy. 5 बजे ऑफिस जैसे ही खत्म होता था, निकलता था, and used to go to some place, I don't know where. तो मेरे को लगा कि कहाँ बिजी है पता नहीं. 5 बजे निकलता है, रात को 12-1-2 बजे आता है, कहीं तो बिजी है, राइट? सो उस 1 महीने में मैंने बहुत बस पूछा क्या कर रहा पता, एंड एवरी टाइम ही यूज्ड टू टेल मी सही टाइम आएगा तो बताऊंगा, समझ, सही टाइम आएगा तो बताऊंगा, राइट? तो आई वाज वेटिंग फॉर दैट राइट टाइम. One day, around 4 o'clock, he gave me a call and he said, सुमन, एक चीज मिला है जिसको करने से अगर तूने इसको कर लिया तो तेरा जो 12 लाख का जो लोन है वो 1 साल में क्लियर हो जाएगा. मैंने बोला ऐसा क्या मिल गया तेरे को? मतलब कुछ मिला है. मतलब क्या करना होगा उसके लिए? बोला सी भेज, राइट? तो एक जॉब करते हुए बंदे के पास कुछ हो ना हो, CV हमेशा रहता है, राइट? तो CV अपडेटेड था, सेंड कर दिया. आफ्टर 1 hour I got a call, your profile has been shortlisted for global business development project, you need to come for an interview in Janpat gate number 2. ऐसा कॉल आया मेरे पास ऑन सैटरडे. तो मैंने कॉल किया कंचन को. कंचन वाज माय रेफरर, एंड आई टोल्ड हिम यार सैटरडे को कैसे जाएं? सैटरडे आई एम वर्किंग इन हॉस्पिटल, सैटरडेज आर नॉर्मली वेरी बिजी, नहीं जा सकता. उसने मेरे को बोला अगर तेरे को 12 लाख का लोन क्लियर करना है तेरे को जाना पड़ेगा. मतलब ओके मैं जाऊंगा, राइट? सो आई डिसाइडेड टू गो, राइट? आई वेंट, आई वेटेड फॉर 2 hours फॉर द मीटिंग, एंड जब मैं बैठा था वहां पे इन CCD लाउंज इन जनपद, तो 9:15 बजे रात को एक बंदा आया CCD लाउंज के अंदर. ही वाज वेयरिंग अ गॉगल, ठीक है? तो मेरे को लगा रात को 9:30 बजे कौन गॉगल पहन के घूमता है, राइट? तो फिर मैंने सोचा अमीर आदमी शायद पहनते होंगे रात को, यू नेवर नो. तो वो बंदा बैठा, राइट? उसने टेबल पे चश्मे रखे, घड़ी खोला, वॉलेट रखा, गाड़ी की चाबी रखा, पूरा दुकान सजाया, एंड देन ही आस्क्ड व्हाई डू यू वांट टू डू बिजनेस? मैंने बोला सर 12 लाख का लोन है, क्लियर करना है, आई केम हियर. एंड देन वी स्टार्टेड इंटरेक्टिंग, एंड आफ्टर 40 मिनट्स का इंटरेक्शन, 40 मिनट का जो बातचीत हुआ हम दोनों के अंदर,
आई वॉज कंप्लीटली सोल्ड आउट। मेरे को लगा भाई साहब क्या बंदा है। मेरे को लगा हाउ कैन ही नो एवरीथिंग, हम कुछ भी कर लूंगा। बोला 2.5 लाख रुपए चाहिए। जैसे मेरे को पैसे बोले, राइट, मेरा वो जो 40 मिनट का जो डिस्कशन जो मेरा चला, वो सब कुछ वो समय भूल गया और सब कुछ आके टिका 2.5 लाख पे। मतलब यही तो नहीं है, बोला ये तो करना पड़ेगा, बोला इसके अलावा कुछ, बोला कुछ नहीं। फिर मैं बोला ठीक है देखते हैं। देन आई कॉल्ड अप माई रेफर, मतलब क्या पैसे है नहीं, तूने फालतू का बल बुला लिया, मेरे को इंसल्ट करने के लिए बुलाया था, किस लिए बुलाया था बता दे। तो वी हैड एन आर्ग्यूमेंट एंड ही वाज अ डिसेंट गाय। ही सेड कोई नहीं सुमन, घर में चल के बात करते हैं। तो उसके बाद हम लोग घर गए, बोला कि तू ट्राई कर, पैसे हो जाएंगे, इट विल चेंज योर लाइफ, दिस एंड दैट। आई सेड ठीक है देखते हैं। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था पैसों का, क्योंकि एक एम्प्लॉई, एक जॉब करता हुआ बंदा जितने टाइप का लोन ले सकता है मैंने सब ले लिया था। I got a personal loan, I got a car loan, I had a home loan, I got a gold loan, I got a mortgage loan, सब कुछ ले लिया था, कुछ छोड़ा नहीं था। तो ना आज के डेट में इफ यू कैन टेल मी कि हाँ मेरे को ये लोन चाहिए, आई कैन एक्चुअली गिव यू द डॉक्यूमेंटेशन कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए लोन के लिए, क्योंकि इतना मैं प्रो हो गया था लोन लेने में। ठीक है, सो आई वाज प्रो इन टेकिंग लोन्स एंड कुछ बचा नहीं था। एंड आई कॉल्ड अप माय मॉम, मम्मी 2.5 लाख रुपए चाहिए, टेल मी व्हाट शुड आई डू। तो मम्मी ने बोला सब कुछ तो है नहीं, सब कुछ तो तू खा गया, एक काम कर LIC है उसके ऊपर देख ले, लोन हो जाएगा। तो उसके पहले तक मेरे को लगा था कि LIC वाज अ स्कैम, LIC वाज अ लाइबिलिटी। LIC से पैसे कहाँ बनते हैं, 20-25 साल तक पैसे रखो 8% का रिटर्न देता है। मेरे को लगा इट वाज अ स्कैम, बट सिंस माय मॉम पुश्ड मी टू डू एन LIC, आई डिड इट। उस दिन मेरे को लगा इट इज एन एसेट। आई रश टू द LIC ऑफिस, 5% के रेट पे लोन देता है LIC वाले। आई टुक अ लोन एंड द मनी गॉट ट्रांसफर टू माई अकाउंट एंड आई कॉल्ड अप माई रेफर कंचन, पैसे आ गए। तो उसने बोला ठीक है अकाउंट डिटेल भेजता हूँ, पैसे ट्रांसफर कर। आई सेड ओके। ही सेंड मी द अकाउंट डिटेल, आई ट्रांसफर्ड इन द मनी। मैंने पैसे ट्रांसफर किए और मैंने उसको कॉल किया, मतलब पैसे ट्रांसफर हो गए, अब बता कब से स्टार्ट करेंगे। ही सेड स्टार्ट हो चुका, बाकी तू वेट कर। मतलब कब स्टार्ट हुआ, मतलब बट इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड सुमन, डोंट वरी। मतलब ओके ठीक है। उसके बाद आफ्टर 5-7 मिनट्स आई गॉट अ मेल, वेलकम टू क्यूनेट करके एक मेल आया। आप लोग के पास भी शायद आया होगा, वंस द रजिस्ट्रेशन इज डन एक मेल आता है, वेलकम टू क्यूनेट। एक मेल आया वेलकम टू क्यूनेट। मैंने पढ़ा, मेरे को समझ में नहीं आया। आई कॉल्ड अप कंचन एंड आई सेड क्यूनेट है क्या, एंड ही वाज, और वो भी नया था, तो उसकी फट गई सुन के। बोला तेरे को कैसे पता। मैं बोला आई गॉट अ मेल। तो बोला इग्नोर द मेल। सो आई इग्नोर द मेल। उसके 15 मिनट बाद एक और मेल आया, उसमें ना परचेज सीट था, आप लोग को भी परचेज सीट मिला होगा। तो मेरे को परचेज सीट आया, एक घड़ी लिया था और एक वेकेशन लिया था। तो मैंने देखा, मैंने उसे कॉल किया, घड़ी लिया क्या। बोला तेरे को कैसे पता। बोला आई गॉट अ मेल। तो बोला इग्नोर द मेल। तो मैंने उसको भी इग्नोर मारा, बट कहने का दिमाग में खटका, ये क्यूनेट है पता नहीं क्या है। सो दैट डे नाइट आई वेंट होम, मैं खाना वाना पकाया, खाना वाना खाया, एंड अराउंड 12 o'clock मैं लैपटॉप खोला और मैंने यूट्यूब खोला उसमें लैपटॉप में, और मैंने क्यूनेट टाइप किया। आई बिलीव आप लोगों ने किया होगा, गूगल क्यूनेट किया होगा, राइट। तो यूट्यूब किया और उसमें बहुत सारे वीडियो आए। तो उसमें से एक वीडियो था जिसका जो टाइटल था वो था वेलकम टू क्यूनेट। तो चीफ पतमन का एक वीडियो है वेलकम का, इट इज़ अ 37 मिनट का वीडियो। तो मेरे को लगा कि जब क्यूनेट स्टार्ट कर ही लिया, लेट्स सी व्हाट इज क्यूनेट। तो मैंने वीडियो स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में इट वाज गुड, मेरे को बड़ा अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आए इसमें। स्टार्टेड इन 1998। बोला स्टार्ट इन 1998, इट्स अ 20-year-old कंपनी, गुड कंपनी। उसके बाद बोला स्टार्टिंग में विश टू सेल गोल्ड, गोल्ड क्वेस्ट हुआ करता था, गोल्ड बेचता था। मतलब सोना बेचती थी, पैसे वाली कंपनी है मतलब। और ठीक ठाक चला। 3-4 मिनट के बाद चीफ सेड नेटवर्क मार्केटिंग। द मोमेंट आई हर्ड नेटवर्क मार्केटिंग, डोबरमैन कुत्ता देखा आप लोगों ने, डोबरमैन कुत्ता, उसमें कान खड़े रहते हैं, राइट। तो जैसे मैंने सुना ना नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने कान खड़े, मैंने क्या नेटवर्क मार्केटिंग। फिर मैंने गौर से सुनने लगा, मैं लैपटॉप के अंदर, ऐसा तो लगा मैं लैपटॉप के अंदर घुस ही जाऊंगा, मतलब बोल क्या रहा है।
फिर पहले तो भरोसा नहीं होगी नेटवर्क मार्केटिंग है, फिर 2 बार 3 बार जैसे बोला, मैं बोला शिट, ये तो कांड हो गया। एंड द वीडियो केप्ट ऑन प्लेइंग। और एक टाइम के बाद, अगर आपने वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो देखना, चीफ पतमन स्टेज पे बोल रहे हैं, पीछे में एक बड़ा सा स्क्रीन होता है, राइट, और फिर चीफ पतमन बोलते हैं दिस इज यू। जैसे दिस इज यू बोलते हैं तो पीछे ना गोला बनता है, सर्कल। मैं बोला शिट, सर्कल बन गया, अब डंडे नहीं आने चाहिए, डंडे नहीं आने चाहिए। मैं भगवान को बोला, "हे भगवान, डंडे नहीं आने चाहिए, डंडे नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए।" एक डंडा आ गया। मतलब शिट, लेफ्ट में डंडा आ गया, अब राइट में डंडा नहीं आना चाहिए। मैं भगवान को बोला, "हे भगवान, डंडे नहीं, डंडे नहीं, डंडे नहीं।" राइट में भी डंडा आया, फिर उसके भी लेफ्ट राइट में डंडा आया, उसके भी लेफ्ट राइट में। मैं बोला भगवान शिट, फंस गया, ये तो नहीं करना था। तो बड़ा खुन्नस आया मेरे को। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आई वेंट टू स्लीप, राइट, एंड आई वाज वेटिंग फॉर द मॉर्निंग, सुबह हो, कंचन को पकड़ू। आई वेंट टू ऑफिस, आई कॉल्ड कंचन एंड आई सेड, तू जहां पे भी है मेरे केबिन में आ, नहीं तेरे बॉस को कॉल करता हूँ मैं। तो बोला नहीं नहीं, बॉस को कॉल मत कर, मैं आता हूँ। बोला ठीक है, आ जा। तो मेरे केबिन में आया, मैंने बोला ये तू जो भी कर रहा है ना, मेरे को ये करना नहीं है, मेरे पैसे वापस दे। तो बोला अबे क्या हो गया, क्यों भड़क रहा है? मैं बोला ये जो तू काम कर रहा है ना, ये कलकत्ता में लोग 7,000 में करते हैं, तूने मुझसे 2.5 लाख रुपए ले लिए। तो बोला कैसा, कैसी बातें कर रहा है सुमन, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सब छोड़, पैसे वापस दे। अरे सुनना भाई, देखना भाई, मतलब भाई भाई क्या तेल लेने, पैसे वापस दे चुपचाप। तो दैट इज, तो मैं तो आई वाज डोमिनेटिंग फ्रॉम बिफोर हैंड ओनली। तो मेरे को बोला सुन, एक काम करता है, एक कॉल करने दे मेरे को, फिर बात करते हैं। मतलब ठीक है, जा कॉल कर ले। He went out, he called somebody, he came inside my cabin, और मेरे को बोला शाम को मीटिंग कर ले, शाम को मीटिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखो समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो पैसे वापस ले लेना। आई सेड ओके। अगेन आई वेंट टू जनपथ, गेट नंबर 2, राइट। मेरे को, आई मेट द सेम पर्सन, विंदेज भाई, हु टुक माय प्लान, एंड he started showing the financial, I believe financial आपने देखा होगा, राइट, यूबी वीबी जो भी था, राइट, रिवर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ESBI। मेरे को पूरा बोलने लगे। मैं सुन रहा हूँ, 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 2 घंटा 15-20 मिनट तो विंदेज भाई बोले, राइट। एंड देन यू नो, एंड देन ही आस्क्ड मी, कोई डाउट? मैं बोला यस। बोला क्या? बोला ये 2 कैसे आएंगे? तो विंदेज बोले सुमन, डोंट फोकस ऑन दीज 2, फोकस ऑन 5 करोड़। मैं बोला सर ये 5 करोड़ तभी आएंगे ना जब 2 आएंगे। बोला नहीं, ये 2 लाने का जिम्मेदारी हमारा, तो 5 करोड़ पे फोकस कर। मैं बोला आप क्यों लाओगे 2? बोला कि वी आर वर्किंग इन अ सिस्टम, वी आर वर्किंग इन अ टीम, वी विल डू। मेरे को लगा बहस करके फायदा है नहीं, कट चुका है, जान दो। तो आई सरेंडर्ड माई सेल्फ एंड वी केम आउट ऑफ मैकडोनल्ड्स, राइट। तो जैसे बाहर निकले, विंदर भाई ने मेरे को पूछा ना कि चाय पिएगा? मैं बोला हाँ चाय पियेंगे। तो वी वेंट एट द बैक साइड पार्किंग ऑफ जनपथ। तो वहाँ पे एक चाय की टपरी थी, आज भी है। तो 2 कप चाय लिया, एंड आई वाज थिंकिंग समथिंग कि क्या है नहीं है। तो विंदर भाई ने मेरे से पूछा क्या सोच रहा है? मैं बोला मैं सोच रहा हूँ कि होगा कैसे। आई एम फ्रॉम कैलकाटा, आई जस्ट केम टू दिल्ली एंड आई गॉट साइंड अप, आई डोंट नो एनीवन, हाउ विल आई डू दिस बिजनेस, हाउ विल आई मेक मनी? तो मुझे, मैंने को बोला एक काम कर सकता है सुमन, आई स्टिल रिमेंबर दोज वर्ड्स। ही सेड, मैं बोला बताओ क्या करना है? बोला तू कुछ मत कर, तू जनपथ में तू जॉब कर, जॉब के बाद जनपथ आ, हम लोग साथ चाय पियेंगे, बातें करेंगे, और तू चले जाना। मैं बोला अच्छा, यही काम करना है, चाय पीना है? बोला हाँ, तू कुछ मत कर, आ चाय पी, हम लोग बातें करेंगे, फिर तू चले जाना। बोला ओके। बोला तू, हाँ बोला ओके। बोला कि तू 3 साल खड़े हो जा। मैं बोला अच्छा, 3 साल तक चाय पीना मेरे को? बोला हाँ, 3 साल तेरे को खड़े रहना पड़ेगा, 3 साल खड़े हो जा धंधे में, तो इसी चाय की टपरी पे एक दिन 10 रुपए का चाय पिएगा, लेकिन तेरे पैरों में 40,000 के जूते होंगे। पहले तो मैं थोड़ा मुस्कुराया, मैं बोला कैसी बातें कर रहे हो, क्योंकि 40,000 के जूते मेरे को कभी पता नहीं था। फॉर मी द कॉस्टलीस्ट शू वाज हश पपीज, उसके बाद मैं कभी गया ही नहीं, right? तो मैं पता नहीं क्या ही बातें कर रहा है, बट समहाउ यू नो आई गॉट कन्विंस्ड। मैं बोला ठीक है। एंड फॉर 3 months मैं ऑफिस से, मैं 4:45 मैं लैपटॉप बंद करता था, बैग उठाता था,
बाइक उठाता था, जन हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन में अपना बाइक पार्क करता था, वहां से जनपद आता था, जनपद से मेट्रो चेंज सेंट्रल सेक्रेटरीट आता था, वहां से मेट्रो चेंज करके जनपद आता था, चाय पीता था, विंदेश भाई के साथ आधे घंटे बातें करता था और मैं चले आता था वापस घर. एंड आई डिड इट फॉर 3 months. व्हाई? बिकॉज आई डिडंट वांट टू डू इट. राइट. तो मैं आता था, चाय पीता था, वापस चले जाता था. 3 महीने करने के बाद मेरे को लगा इतना टाइम हो गया, करके देखते हैं. क्योंकि बाय दैट टाइम आई हैव रेड द इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का गाइडलाइन, वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, डिफरेंट कंपनीज, द वे ऑफ वर्क एंड व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग ऑल अबाउट. तो उतना मैंने पढ़ लिया था. तो मेरे को लगा करके देखते हैं. तो विंदर भाई के पास गया, मैंने बोला काम करना है. विंदर भाई पहले तो मुस्कुराए, फिर बोले सच में? बोला हाँ सच में काम करना है. बोला ठीक है, एक काम कर ना, लिस्ट बना. मैं बोला ठीक है. मैं घर गया, मैंने 24 लोग का लिस्ट बनाया. ठीक है. मैं विजय भाई के पास गया, मैं बोला ये रहा लिस्ट. मैं बोला ये क्या है? मैं बोला यही है. बोला इससे कुछ नहीं होगा. मैं बोला जो भी है इसी से करना पड़ेगा. तो ही गेव अप ऑन मी. मतलब बोला ठीक है करके देख. तो आई शोड 17 प्लान्स इन नेक्स्ट 3 months. राइट. नोबडी साइंड अप. जो भी आया वो बोला ये स्कैम है, ये चलता नहीं है, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को. राइट. तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला. तो एक के बाद एक 17 लोग आए. 17 ऑफ देम सेड नो 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 नो. एंड मेरे को लगा पता नहीं क्या ही हो रहा है. राइट. और एक दिन एक पॉइंट आया, एक पॉइंट आई डोंट नो, पहले जो भी स्पीकर्स आपको बताया नहीं बताया, बट एक पॉइंट आएगा आपके लाइफ में, इस जर्नी में. वो मेरे साथ हो चुका है, आपके साथ भी होगा. राइट. एंड इट्स बाउंड टू हैपन. सबके साथ होता है. एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि यार बहुत हुआ, बहुत हुआ, अब छोड़ो. राइट. तो एक पॉइंट मेरे उसमें भी आया, व्हेन आफ्टर 6.5 months नथिंग वाज मूविंग. मेरे को लगा यार बहुत हो गया, अच्छा खासा मैं सैलरी कमाता हूँ, यहाँ पे टाइम खोटी करके कोई फायदा नहीं है. एक 108 गुड ग्रुप बनना होगा आप लोग, आई डोंट नो, राइट, व्हाट्सएप पे. एक 108 मेरा था, और मैंने लिखा आई एम, दिस बिजनेस इज नॉट मेंट फॉर मी, आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम टुमारो. राइट. और जैसे मैंने लिखा, विंदेश भाई का कॉल आया 2 बार. इट वॉज अराउंड 12 o'clock इन द नाइट. मैंने फोन नहीं उठाया, मैंने फोन उल्टा करके रखा और मैं सो गया. नेक्स्ट डे आई वोक अप, वेंट टू ऑफिस. और जैसे वो ना नशीले लोगों को नशा नहीं हो जाता, चरस गांजे वाले को एक पर्टिकुलर टाइम पे वो नशा चाहिए होता है, ऐसा आदत से पड़ गया था पीओए का. तो मैंने जाने अनजाने में 4:45 बजे लैपटॉप बंद किया. और जैसे मैं लैपटॉप बंद किया तो मेरे याद आया, अरे कल ही तो बोला था नहीं जाना है. फिर मैं सोचा वो चल के देखते हैं, फ्री बैठे हैं, क्या करना है और घर में जाके. आई वेंट टू जनपथ. आई तो वहाँ पे देखा मैंने विंदेश भाई, ही वाज सिटिंग ऑन अ बुलेट. तो बुलेट पे बैठे थे. जैसे मेरे को देखा, मेरे को बोला सुन इधर आ. मैं गया वहाँ पे. तो मेरे को ना एक पार्किंग के पास ले गए, डस्टबिन वाला पार्किंग एक था जनपद, वहाँ पे ले गए. और मेरे को नॉन स्टॉप 20 मिनट तक गंदी गंदी गालियाँ, इतनी गंदी गालियाँ, माँ बहन सब कुछ की गालियाँ देने लगे, टक टक टक, कि रेंगता हुआ कीड़ा, गरीब आदमी, पता नहीं इतना कुछ बोला मेरे को, इतनी गालियाँ दी. मैं खड़ा के सुन रहा था, वैसा कुछ नहीं करा था. जब विंदर भाई चुप है 20 मिनट का बाद, मैंने पूछा अब क्या. तो विंदर भाई ने बोला तेरा क्लोजिंग चल रहा था, उसको फॉलो अप कर. तो उसको एंड उन्होंने मेरे को बोला कि यू आर अ बैंकर, व्हाई डोंट यू रिमेम्बर, तो बैंकर है, अपने जो दोस्त है उसको लोन के लिए रास्ता बता. अच्छा ठीक है. तो विंदर भाई ही वेंट. आई कॉल्ड अप हेमंत. हेमंत was my friend. We used to do, we were in same college. I called up हेमंत. और जो 20 मिनट तक जो मेरे को गालियां विंदेश भाई ने दी, वो डिट्टो कॉपी पेस्ट मैंने हेमंत को किया. तू रेंगता हुआ कीड़ा, तू गरीब आदमी, तू गरीब बन जाएगा, ये वो. 20 मिनट तक गाली सुनाया मैंने उसको, जो गाली मैंने विंदेश भाई से सुना. 20 मिनट बाद विंदेश बोला, ये हेमंत मेरे को बोला करना क्या है. मैंने उसको 3 नंबर दिए, एक्सिस बैंक का, एचडीएफसी बैंक का और यस बैंक का. और इनसे कॉल कर, इनसे बात कर, लोन के लिए लोन हो जाएगा. दो दो जगह से लोन रिजेक्ट हो गया, थर्ड वाले से यस बैंक से लोन अप्रूव हो गया. तो 7 months into the business I did my first DR, right. And uska I signed up my my mom as well. On the 8th month of the business I
earn my first check, right? But when I earned my first check, मैंने पहला चेक 12,000 का, I was earning a salary of 2.5 lakh rupees. मेरे को लगा पता नहीं क्या, मतलब I was clueless, करना है नहीं करना and all those stuff. But I decided to keep pushing, right? And उसके बाद जब वो पहला चेक बना, जब वो हेमंत साइन अप हुआ, right? उसके बाद there was no looking back. The next 2 months I qualified for LS. The next 2 months I qualified for LSC. The first check I made in 8 months. The next 8 months I did my 100 UVs. 100 UVs is approximately around 4.5 lakh rupees in a week, right? And the next 8 months we did my 100 UVs. And the next 8 months I did my 100 UVs. And we had approximately around 2,000 people working in 12 different states in India, right? How does it happen? How did it happen? I don't know, but it just happened, right? So most of you, right? The reason I told you this story of mine is because I was just like you, right? I also didn't wanted to do the business, right? But today, wherever I am, right? I am here because somewhere I decided to listen, right? I decided to give myself time, right? And that's the reason where I am what I am. एक टाइम था जहाँ पे मैं इंटरव्यू देने गया आईसीआईसीआई बैंक में. मेरे से पूछा, सुमन व्हाट इज योर ड्रीम जॉब, ड्रीम सैलरी, सॉरी. तो मेरे से ड्रीम सैलरी पूछा. मैंने बोला सर 1 लाख रुपीज अ मंथ एंड 12 लाख रुपीज अ ईयर, राइट. तो उससे जो एचआर था मेरे को देखे मुस्कुराने लगा, राइट. एंड ही ऑफर्ड मी अ जॉब ऑफ 13,000 रुपीज, राइट. Today, 5.5 years into this business, I wear a Hublot, right, which is 12 lakh rupees, right. 12 लाख का मैं घड़ी पहनता हूँ, ठीक है. तो ये तब हुआ, right, when I decided to listen, when I decided to, you know not giving ears to the negative voice around the world, and decided to follow and work for my goals and work for my dreams, correct. So we all start the journey like this only. There is no other way. We become a part of this industry. We become negative because of different things around us, and then ultimately, we decide to work hard and we decide to move forward. Yeah. So today, I'm going to talk about something, a topic, right, which has changed my thinking, my thought process in this course of journey. Okay. And I have listened to this module in my LS, right, and I have been practicing it since then, correct. And if you follow this, whatever I'm going to say now, right, if you are going to follow this 100% for the next 6 weeks, right, believe you me, right, बिजनेस तो चलेगा, जो भी चलेगा वो तो है. योर लाइफ एंड यू एज एन इंडिविजुअल विल डेफिनेटली चेंज, राइट. एंड व्हेन यू चेंज द बिजनेस चेंजेस, राइट. वेलकम में सुना होगा आपने, जर्नी फ्रॉम ए टू बी, राइट. एंड यू नीड टू चेंज, राइट. सो चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम मी. इट्स मी हु नीड टू चेंज, राइट. सो द मॉड्यूल जिसको शायद आप लोगों ने मैसेज पढ़ा होगा, इट्स कॉल्ड 3 की कॉम्बिनेशन, राइट. So if you follow these 3 key that I'm going to talk to you now, right, if you follow this 100%, believe you me, right, the next 6-7 months, your business will take a different shape altogether, right. So the first key, the first element of the third key, the 3 key combination, is something we call it as positive state of mind, right. So if you want, you can write it down, or you can just listen to me, right. So the first key is basically your positive state of mind, right. Now ये जो term है, ये जो phrase है, आपने ना बहुत बार सुना होगा अपने life में. You need to have positive state of mind. You need to have positive state of mind. अच्छा सोचो, सुना होगा सब लोगों ने, right. तो बोला सबने होगा, सुना सबसे होगा, लेकिन करता कोई नहीं है, ठीक है. तो what is state of mind, right? अगर मैं state of mind का बात करूं, state of mind is something जहाँ पे if you cut open your skull, अगर मैं अब खोपड़ी अगर मैं 2 हिस्से में अगर मैं काट के अलग कर दूं, what is there inside my head is my state of mind. It might be good, bad, ugly, whatever it is, right. Now
if you talk about my mind, if you talk about our mind, not in my mind, if you talk about every one of us, in a second or probably in a minute, some millions of thoughts goes around our head, right? अभी भी ना बहुत सारे लोग बैठे हो, राइट? बहुत लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, राइट? आई डोंट नो वेयर दे आर, है भी या नहीं, आई डोंट नो। बहुत लोग अगर इस कॉल में अगर आप वीडियो ऑन का भी बैठे हो, तो हो सकता है फिजिकली यहाँ पे हो, बट मेंटली यू माइट बी इन आईपीएल, आई डोंट नो। आईपीएल चल रहा है, आधे लोग सोच रहे होंगे आईपीएल चल रहा है, पता नहीं किसने कितना छक्का मारा, क्या स्कोर है, राइट? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वी आई हैड अ बैड डे इन द ऑफिस, ठीक है? यहाँ पे कुछ लोग जैसे नॉर्फेल है, यू नो, तो यू माइट बी फिजिकली प्रेजेंट है, बट मेंटली यू आर समवेयर, right? And that is what is your state of mind, correct? And thoughts जिसका मैं बात कर रहा था, right? जैसे every minute some millions of thoughts comes to our mind, right? And वो on उस thought में इतना energy होता है, the thoughts are so powerful, it basically affects your actions and the outcome of what is going on around your life, right? अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, लेट्स से we're in lockdown, so most of you are working from home, right? Let's say, you know, today was Monday and you had an amazing day in the office, right? And boss ने praise किया, no, संजय मिश्रा, you are an awesome person, the day was good, आपको appreciate किया, and you felt very good, ठीक है? 7 o'clock you disconnect from Zoom and आप बहुत खुश होके घर अपने जो रूम था उससे बाहर निकलते हो, आपकी वाइफ कुछ तो देख रही होगी, सास बहू का कुछ सीरियल देख रही है आपकी वाइफ, और संजय जी ने अपनी वाइफ को बोला, डार्लिंग आज डिनर मैं बनाएगा। तो वाइफ बोलती है, अच्छा सच में, क्या बनाओगे? बोला, देखते हैं जो भी किचन में है, लीव इट अप टू मी, मैं बनाएगा। बोला ठीक है। तो वाइफ भी बहुत खुश होती है। तो संजय जी आउट ऑफ एक्साइटमेंट ही गोज टू हिज रूम, चेंजेस, जो फॉर्मल शर्ट टी शर्ट पैंट पहनने थे उसको हटा के शॉर्ट्स टी शर्ट्स में आते हैं, एंड फोन लेके ही गोज टू द किचन, राइट? ही गोज टू द किचन एंड ही सीज कुछ अंडे रखे हैं फ्रिज में, आलू रखा है, तो ही डिसाइड्स कि अंडा करी चावल बनाते हैं, राइट? वो पतीला लेते हैं, अंडे डालते हैं उसमें, एंड द एग इज बॉइलिंग। उसी प्रोसेस में उनका फोन बजता है, राइट? सो लेट्स से नो हरीश है, हिज फ्रेंड ऑफ संजय मिश्रा, ठीक है? तो संजय जी को कॉल करते हैं, तो हरीश बोलता है, तेरे पास मेल आया संजय? संजय बोलता है, नहीं मेरे पास तो कोई मेल नहीं आया। अरे यार मेरे को ना निकाल दिया कंपनी ने, आई गॉट अ पिंक स्लिप टुडे, ठीक है? तो संजय बोलते क्या बात कर रहा है, निकाल दिया तेरे को? हाँ यार निकाल दिया, मेरे को बोला या तो रेजिग्नेशन दे दो, टर्मिनेट कर दूंगा, तो मैंने रेजिग्नेशन दे दिया, तो कल फुल एंड फाइनल करेंगे। बोला सच में? बोला हाँ सच में। ये बोल के हरीश बोलता है, ठीक है तेरे पास मेल नहीं आया तो तू बच गया, मेरे को देखना पड़ेगा, बोल के हरीश डिस्कनेक्ट द कॉल। नाउ संजय मिश्रा, राइट, वो क्या करता है, वो बोलता है भाड़ में गया अंडा, फोन उठाता है एंड ही स्टार्ट्स चेकिंग द मेल। कोई मेल नहीं आया, ना तो कोई कॉल आया, राइट? बट बोलता हे भगवान, हरीश का तो जॉब चला गया, अब मेरा क्या होगा? बट इसको आज बॉस ने प्रेस किया, अप्रिशिएट किया, तो भूल जाता है अगर मेरा जॉब चला, तो मैं बैठकर सोचता अगर मेरा जॉब चला गया तो, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो मैं ईएमआई कैसे दूंगा, ये कैसे? कुछ हुआ नहीं है लेकिन सोच रहा है, राइट? उतने देर में अंडा जो बॉईल करने के रखा था वो फूट फाट के पीसेस में चले जाते हैं। वाइफ को कुछ स्मेल आता है, वाइफ आते बोलते हैं हे भगवान ये क्या कर रहा है किया अंडे का? और संजय जी ने फोन पे लगे पड़े, वेट कर रहे हैं मेल का, ठीक है? इट इज 9 o'clock, मेल का वेट कर रहे हैं, मेल आएगा, ठीक है? तो ही इज वेटिंग, यू नो, उनका भी एक मेल आएगा दैट यू बीन टर्मिनेटेड, समथिंग लाइक दैट, बट मेल आता नहीं है। और इसी प्रोसेस में वाइफ आती है, वाइफ बोलते है क्या किया अंडे का? तो संजय जी बोलता है एक काम कर, तू खाना पका, मैं जा रहा हूँ रूम में, मेरा तबियत खराब लग रहा है, राइट? So that is what happens every single day, right? So that thought which comes, एक thought दिया, हरीश ने thought दिया, वो हुआ नहीं, एक thought दिया, और वो thought इतना पावरफुल था, राइट? पूरा जो एक पॉजिटिव और एक एनर्जी के साथ संजय जी डिनर करने गए, वो नेगेटिव हो गया और सब कुछ खत्म, सब कुछ बर्बाद,
right? So your thoughts affects your feeling. If you want, you can write it down, right? So your thoughts, basically it affects your feelings, correct? And your feelings affects your energy, right? And your energy affects the outcome of the process जो भी है, right? So your thoughts affects your feeling affects your energy, and your energy affects your outcome, right? So चंदन जी के साथ यही तो हुआ, एक थॉट आया, right? और फीलिंग खराब हो गया, और आउटकम एनर्जी नेगेटिव हो गया, और आउटकम क्या हुआ? ना तो डिनर बनाया, ना तो डिनर खाया, right? Let's take one more example. Let's say, let's say you you have a friend, right? उसका बर्थडे पार्टी है, तो he gives you a call और बोलता है कि एक काम कर सुरेश, कल मेरा बर्थडे है, I booked a resort, एक let's in छतरपुर, let's say छतरपुर में एक रिजॉर्ट बुक किया है, you need to come with your sister, ठीक है, and we will have fun. बोला ठीक है। तो सुरेश जो है बड़ा एक्साइटेड है, ठीक है। नेक्स्ट डे इवनिंग दे he comes from office early, जल्दी ऑफिस से छूट के घर आता है, and he picks his sister, गाड़ी उठाते हैं, and they reaches the venue for the party. पार्टी में पहुंचते हैं, एंड पार्टी में पहुंचने के बाद he sees कि उसके सारे दोस्त पहुंच चुके हैं, म्यूजिक चल रहा है, एकदम नाचते नाचते अंदर जाता है, लाउड म्यूजिक, एंड he loves the music, एंड म्यूजिक में एंजॉय कर रहा है सुरेश, नाच रहा है, एंड ही सीज कि एक बार काउंटर है, एक साइड में खाने पीने काउंटर है, वेज नॉन वेज। तो वो बार काउंटर जाता है, एक ऑरेंज जूस लेता है, राइट, एंड नॉन वेज वाले काउंटर में जाके एक टंगड़ी कबाब लेता है, और नाचते नाचते पेग भी लगा रहा है और खा भी रहा है, इट इज एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट, ठीक है। पहला पेग खत्म हुआ, दूसरा पेग खत्म हुआ, तीसरे पे को लेने जाता है कि फोन वाइब्रेट करता है, मैसेज आता है, ठीक है। तो ग्लास रखता है, फोन को उठाता है, और एक मैसेज आता है, तो मैसेज खोल के देखता है, EMI of 24,650 rupees is about to get debited from our account tomorrow. Please keep the account funded. मैसेज आता है ऐसा, आप लोगों के पास भी आता होगा, EMI वाले लोग, राइट। तो बोलता है कल EMI कटेगा, अकाउंट में तो पैसे नहीं है, तो ना बैठ जाता है, कल 24,000 रुपए कटेंगे, कहाँ से पैसे आएंगे, राइट, टेंशन में जाता है, और ना ग्लास रखता है, उसका दोस्त बोलता है अबे चल दारू पी, बोला कि अबे रुक मैं कुछ सोच रहा हूँ, लेट मी थिंक। तो ना 2-3 लोगों को मैसेज करता है, पैसे दे दे, 5,000 रुपए दे दे, 10,000 रुपए दे, 15 रुपए दे दे, सबको मैसेज कर रहा है। एंड आफ्टर सम टाइम वो जो म्यूजिक, द लाउड म्यूजिक दैट ही वाज एंजॉयिंग, इट बिकम्स अ नॉइज, एंड ही फील्स हेटिंग इट, बोलते कि भगवान कोई गाना बंद करो, राइट। फिर उठता है और अपने बहन को वावा देता है, चुन चल घर चल। उसकी बहन बोलते है भाई अब तो खाना ही नहीं खाया, खाना तो खाने दे। बोले बहुत खाना हो गया, चल घर में जाके तो खिलाता हूँ, चल। तो एकदम गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में अपनी बहन को खींचते हुए लेके जाता है, गाड़ी में बैठाता है, और ना सोचते सोचते कि ना 24,000 रुपए कहाँ से आएंगे करते करते वो गाड़ी बैक करते करते जाके मारता है एक मर्सिडीज में, ढम, राइट। तो मर्सिडीज वाला का जो ड्राइवर होता है कूद के बाहर निकलता है, बोला ऐसे कैसे मार दिया, पैसे देने पड़ेंगे। वहां पे बवाल कर दिया, उसको 10,000 रुपए देता है, पैसे थे नहीं, ऊपर से किसी से 10,000 रुपए लेके देता है, एंड पहले पहले -24,000 था, अब -34,000 रुपए हो गया, करेक्ट। सो योर थॉट्स आर सो पावरफुल, राइट, it affects your feelings, which affects your energy, and which in fact affects your outcome, right? So we need to understand this, right? And we should learn to control those thoughts. Now controlling those thoughts are not in our hands, it is difficult, right? कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग, बट the one thing which we can do, कंट्रोल करने के लिए you need an expertise which you will, अगर आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो you will learn that, right? But as of now, if you cannot control the thoughts, what you can do is you can be aware of those thoughts, right? मतलब you need, अगर आप बैठे हो और एकदम दिमाग ना नेगेटिव सोच में आ रहा है कि ना धंधा चलेगा नहीं चलेगा, जिसको पैसे दिए वो भाग तो नहीं जाएगा,
जैसे कोई नेगेटिव, एक जैसे नेगेटिव थॉट आए, यू नीड टू बिकम अवेयर ऑफ इट. जैसे आप अवेयर हो गए, you need to do something so that you can get out of that feeling, right? So the first step of coming out of that negative thought process or the negative state of mind is becoming aware of it, becoming aware of the thoughts, right? Now ये thoughts जिसको मैं बात कर रहा था, ये कहाँ से आते हैं? From where these thoughts creeps in? ये जो thought है, this basically creeps in first is basically from your surroundings. आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, किस लोकेलिटी में रह रहे हो, राइट? व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू इंटरेक्ट विथ, राइट? ये सब कुछ इफेक्ट करता है आपके थॉट प्रोसेस को, राइट? तो मैं हमेशा बोलता हूँ, राइट, इफ यू वांट टू बाय अ मर्सिडीज यू नीड टू बी विद पीपल हु आर ड्राइविंग मर्सिडीज और हु हैव द थॉट प्रोसेस टू बाय अ मर्सिडीज, करेक्ट? अगर आप किसी बाइक वाले को बोलोगे ना जाके, भाई मर्सिडीज चलाना है, बोला पागल है, 50 लाख का गाड़ी, 50 लाख में तो 50 बाइकें आ जाएंगी, वी कैन ओपन अप अ शोरूम. So your surroundings, the people whom you are associated with, right, ये बहुत मैटर करता है, राइट? और जब भी आपके साथ कोई भी ऐसा बंदा मिले जो कि नेगेटिव बोलता है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, वैसे उनसे क्या करना पता है? जैसे अभी कोरोना में चला है ना, सोशल डिस्टेंसिंग, कम से कम 2 मीटर का फासला रखे. ऐसे लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखा करो, राइट? कीप अ 2 मीटर का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पीपल, राइट? सो योर सराउंडिंग. सेकेंड, योर यूजेज ऑफ वर्ड्स, आप कैसे वर्ड यूज करते हो. सो द वर्ड्स दैट यू यूज also plays a very 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 vital role. Now there is a word हम लोग सब लोग यूज करते हैं. आज तक मैंने उस वर्ड के बाद ना किसी को पॉजिटिव वर्ड सुनते नहीं बोला है, राइट? एंड द वर्ड इज बट. सब कुछ बढ़िया है, बट खीर बहुत अच्छा बनाया है, बट के बाद में कभी पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, आता ही नहीं है, राइट? रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है? थर्ड, I remember, right, when this lockdown happened, starting में इनिशियल 3 महीने टीम में क्या चला, कोरोना के केसेस इतने बढ़ गए, इतने लोग मर गए, ये हो गया, वो हो गया. तो द विजुअल्स दैट यू सी, राइट, नॉर्मली आई डोंट नो बट लोग बोलते हैं कि ना सोने के पहले पॉजिटिव वीडियो देख के सोया करो, अच्छी चीजें देख कर सोया करो, राइट? वाई? ताकि ना सपन, अगर रात को भूत का मूवी देख के सोओगे तो रात भर ना भूत ही आएगा सपने में, राइट? तो विजुअल्स, अगर आप न्यूज देख रहे हो ना कि इतने कोरोना के केसेस हो गए, इतने लोग मर गए, राइट, आपको भी लगेगा कि अब कैसे बाहर जाए, बाहर तो कोरोना है, मर जाएंगे लोग. सो द विजुअल्स, आप जो भी चीज देखते हो, राइट? नाउ सास बहू जो भी सीरियल होता है, राइट, माय मॉम शी यूज्ड टू सी, यू पीपल आर न्यू, राइट? एक तो था कौन सा, कसौटी जिंदगी की, ऐसा कुछ था, सास भी कहूँ बहुत ही, राइट? नाउअडेज कुछ और आया, अपग्रेडेड वर्जन. उसमें ना हीरो कभी मरता नहीं है, राइट? हीरो मर के फिर जिंदा हो जाता है दूसरी बीवी के साथ, ठीक है? तो एक ही बंदे का तीन बीवी, उसके 12 बच्चे, राइट? आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, कहाँ से आता था. और इसको देखने के बाद ना हर घर में कलेश हो गया, तुम्हारा कोई अलग से अफेयर तो नहीं है, राइट? सो whatever you see, right, all the negative things that you look around, it will create a negative impact in your head. वो negative thoughts ना डाला जाएगा, right? So तो ना negative चीजें मत देखा करो, right? टीवी खोल लो, न्यूज मत देखो. न्यूज में आई डोंट नो, न्यूज में कोई अच्छा चीज बताता है, मैंने पढ़ा नहीं कभी, राइट? इट इज ऑल नेगेटिव्स. तो मैंने न्यूज देखना बंद कर दिया. आई हैव an app called News in Shorts. I don't know how many of you know it. There's an app, you can download it. It's called News in Shorts. तो कोई भी बड़ा सा न्यूज हो उसको 60 वर्ड में कंपाइल करके उस ऐप में आता है. इट्स अ वेरी गुड ऐप, यू स्टार्ट यूजिंग इट, ठीक है? तो पूरा दिन न्यूज आता है उसमें, तो आई यूज इट. मैं देखता नहीं हूँ टीवी, क्या देखूं, कौन मर गया, कौन कोरोना में क्या हुआ, मेरे को क्या करना है, राइट? So your associations, the people you're associated with, the friend, the circle you're associated with, right, the word usage, right, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है, which impacts your thought process
and which impacts your actions or your outcomes, right? और ये जो series of thoughts जो हमारे दिमाग में आते हैं, right, it eventually creates a belief system, right? ना हम लोग के में क्या ना हम लोग ने मूवी देखा है, राइट? ना हम लोग सब मूवी देखते हैं, राइट? तो अब ना दुनिया इन बॉलीवुड का कोई भी मूवी उठा के देख लो, विलेन हमेशा अमीर होता है, हीरो हमेशा गरीब होता है। विलेन के पास बहुत पैसा होता है, विलेन की बेटी खूबसूरत होती है, हीरो गरीब होता है, राइट? यही 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 होता है ना मूवी में। तो हमारे दिमाग में क्या हो गया, अच्छा जो लोग 5 स्टार में खाना खाते हैं ना, ये लोग ना 2 नंबरी काम करते हैं, ठीक है? तो अच्छा आदमी हमेशा गरीब होता है, क्यों? कौन बोला? ठीक। तो एक थॉट, एक बिलीफ सिस्टम बन गया है। तो अगर आपको पैसा वाला बनना है तो आपको 2 नंबरी काम करना पड़ेगा। कहां से सीखे? मूवी में देखा, वहां पे बोला, बोगैम्बो खुश हुआ, बोगैम्बो वाज वेरी रिच। बोगैम्बो पता नहीं क्या बोलते हैं, बोगैम्बो बोलते थे उसको। बोगैम्बो वाज वेरी रिच बट ही वाज अ बैड गाय। तो हमको लगता था भाई साहब पैसा कमाने के लिए खराब बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, राइट? तो द सीरीज ऑफ थॉट्स, हम लोग जो भी देखते हैं, जो भी सुनते आए हैं, सीरीज ऑफ थॉट्स जो भी होता है, इट क्रिएट्स अ बिलीफ सिस्टम। आप लोग ना बोलते बोलते शायद बोलते हो, आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड। किससे सीखा? किसने बोला, किसने सुना होगा आपने मिडिल क्लास, राइट? मिडिल क्लास क्लास थोड़ी होता है, मिडिल में क्लास होता है, ऊपर और नीचे, अपर क्लास लोअर क्लास। बीच वाला बंदा जिंदगी में पिसता रहता है सैंडविच की तरह, ठीक है? तो मिडिल क्लास से ना गरीब लोगों को गरीब बोलने में ना थोड़ा दिक्कत होता है, सो ना गरीब नहीं बोलते, तो इसको ना थोड़ा एक टर्म दे दिया, मिडिल क्लास, राइट? तो उसको क्लास लगा दिया तो क्लास हो गए, ठीक है? तो एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो गया है ना, वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, राइट? हम लोग की लाइफ ऐसी है, जॉब करना ही पड़ेगा। क्यों जॉब करना पड़ेगा? तो एक बिलीफ सिस्टम आया, और एंड वी स्टार्टेड बिलीविंग इन दैट। और बिलीफ सिस्टम कहां से आता है? सीरीज ऑफ थॉट्स। डीपीएस बहुत अच्छा स्कूल है। क्यों? कहां से पढ़ा? किसने तो बोला, तो 10 लोगों ने बोला, आपने डीपीएस में ना ये होता है, ये होता है, एक थॉट आया दिमाग में, एंड इट बिकेम अ बिलीफ सिस्टम का डीपीएस इज अ वेरी गुड स्कूल, राइट? और किसी ने बोला नेटवर्क मार्केटिंग मैंने किया था कुछ साल पहले, मैंने ना कंपनी भाग गई। एक बंदा बोला नेटवर्क मार्केटिंग मैंने किया था, मैं से हो नहीं पाया। तो एक बिलीफ सिस्टम बन गया, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग मतलब चलता नहीं है, चला। और दुनिया में, मैं तो लोगों को बोलता हूँ, दुनिया में कौन सा चीज है जो चलता है? मेरे पास 50 लाख का गाड़ी है, आई ड्राइव अ मर्सिडीज, राइट? द पीपल whom I roam around with, they are driving Volvos and Audis and all these cars. क्या चलता है खुद से? कुछ नहीं चलता खुद से। मर्सिडीज भी चलाओगे तो चलेगा, राइट? हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग चलता नहीं है, चलाओ तो सही ढंग से, क्यों नहीं चलेगा, राइट? एक बिलीफ सिस्टम है कि चलता नहीं है, करेक्ट? सो टू कम आउट ऑफ दैट, करेक्ट? सो ये जो मैंने बोला थॉट्स, राइट? इस चीज को अगर आपको कंट्रोल करना है तो समवेयर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इट, कि हाँ थॉट आ रहा है, एंड देन डू I need to create a shield ताकि वो ना अंदर ना आए, right? Now how to create that shield कि वो thought process आपके अंदर ना आए, right? So there are basically 3 things that you can do to ensure कि वो जो एक नेगेटिव थॉट है, जो सोच है, वो हमारे दिमाग में ना आए, और ताकि our actions and outcomes are not impacted or affected, right? Now the first uh, tool, the first technique to control that thought is something which I call it as uh, having changing your physical state of being, right? So if you want to change a physical state of mind, you need to change your physical state of being. मतलब let's say if I'm sitting here, right? मेरे दिमाग में ना नेगेटिव थॉट आ रहा है,
पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो जैसे ही मेरे पास दिमाग नेगेटिव थॉट आए, आई नीड टू चेंज माई पोस्चर। अगर मैं बैठा हूं तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, खड़े खड़े सोच रहा तो बैठूंगा, चल लूंगा, कुछ भी करूंगा, बट आई विल चेंज द physical state of being so that that thought cannot enter my head. So can you people do you want to see a demo कैसे होता है? Right. So I want you people to think something very negative. मैं पैदा ही क्यों हुआ, मेरा जिंदगी बर्बाद है, मतलब कुछ भी इतना नेगेटिव कि ना, मतलब जितना नेगेटिव सोच सकते उतना उतना नेगेटिव सोचो। सोचा? नाउ सोच लिया, मतलब मेरा जिंदगी बर्बाद है, मेरे घर वाले खत्म है, मेरे पापा ने मेरे को पैदा ही क्यों किया, मेरे को मार डाल दे, जो भी वट एवर नेगेटिव यू कैन थिंक अबाउट, सोचते सोचते खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्टैंड, आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्टैंड, बट keep thinking that negative thing that you are thinking. ठीक है? Okay, good. Now I will play a song. ठीक है? You need to dance on it, thinking about the positive things that you are thinking. ठीक है? So I will play a song and I want you people to dance. एक second. Okay, sit down. Okay, so I will unmute few people and you just have to share, right? So I am unmuting Manisha. Manisha, you can unmute yourself. Unmute कर लो, unmute. Okay. Manisha, when you were dancing, वो जो thought, जो negative thought जो आप पहले जो बैठ के आपने सोचा था, वो आया दिमाग में? नहीं आया। तो नाचते वक्त क्या क्या सोच रहे थे आप? मैं म्यूजिक को सुन रही थी। Okay, so you were just listening to the music and you were dancing. तो नेगेटिव जो थॉट था वो नहीं आया, वो नहीं सोच रहे थे आप? नहीं। Okay, good. Okay, someone. बहुत से लोगों को मैं नाचते हुए देखा था. Okay. Monali, you can unmute yourself. Yes, sir. हाँ, जब आप नाच रहे थे तो क्या दिमाग में क्या चल रहा था? सोचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस इंटेंसिटी में आ नहीं रहा था. I couldn't think about that. Okay. So it is a scientifically proved mantra that whenever you think of something negative or because your दिमाग में negative आ रहा है, immediately change your physical state of being. अगर आप लेटे हो, पंखा देख रहे हो, सोचोगे पंखा गिर ना जाए मेरे ऊपर, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बैठे हो चलने लगो, चल रहे हो खड़े हो जाओ, मतलब wherever you are, change your physical state of being, right? नहीं तो नहीं होगा. एंड इसका साइंस है इसके पीछे कि अगर आप लोगों ने ट्रेन या बसेस में अगर आपने ट्रैवल किया है, राइट नाउ, आपने जब मेट्रो चल रहा है तो चल रहा है, एक
स्पीड में है, आप खड़े हो, जैसे मेट्रो जैसे रुकता है, एक झटका सा हम लोग सबको झटका सा मिलता है, राइट? व्हाई? बिकॉज द ट्रेन वाज आल्सो इन मोशन, आवर बॉडीज वाज आल्सो इन अ मोशन, और जब रुका तो हमको भी झटका खाया, राइट? सो इट इज अ साइंस दैट व्हेनेवर वी आर इनटू अ मोशन, राइट, वी नीड, अगर उसमें कुछ रुकावट आता है या ब्रेक लगता है तो एक जर्क सा फील होता है, राइट? तो सिमिलरली व्हेनेवर यू थिंक ऑफ समथिंग नेगेटिव, राइट, immediately change your posture, immediately change your physical state of being, right? So the first point was to change your physical state of being, change your to change your physical state of mind, change your physical state of being, right? First, right? Second most important or crucial tool, it has been invented by NASA, right? नासा का इन्वेंशन है, तो आज तुम लोग को बताने जा रहे हैं, तो सुन लो ध्यान से, राइट? सो व्हेनेवर यू फील दैट एक नेगेटिव थॉट आ रहा है या मैं नेगेटिव कुछ सोच रहा हूँ, राइट, स्माइल, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, राइट? तो व्हेनेवर यू स्माइल, राइट, you're automatically at the back of your head, all the negative emotions, they go away, right? Now I don't know आपने कभी देखा नहीं देखा है, right? I have a 5-year-old son. मैं चाहे कितना भी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, चाहे मैं कितना भी गुस्से में हूँ, the moment I look at my kid who is smiling, I feel refreshed. आप जब भी आप मॉल में हो, कहीं पे भी हो, एक बच्चे को जब भी आप हंसते हुए देखोगे ना, यू ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे ही मुस्कान आ जाएगा, करेक्ट? तो I don't know whether you have came across this or not. आप एक लिफ्ट के बाहर खड़े हो, ठीक है, और जैसे लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, राइट, यू सी अ मैन, ये नॉर्मली फॉरेनर्स में ज्यादा होता है, यू सी अ मैन इन द लिफ्ट, द मोमेंट द लिफ्ट ओपन्स, राइट, और आप जैसे आप लिफ्ट के अंदर घुसने की कोशिश करते हो, द मैन इन द लिफ्ट ही स्माइल्स एट यू, राइट? द मोमेंट ही स्माइल्स एट यू, यू स्माइल बैक, ठीक है? और फॉरेनर्स तो एक स्टेप आगे, हेलो गुड मॉर्निंग, आप भी बोलते हो यस हाय गुड मॉर्निंग, और वहीं पे लेट्स से आप लिफ्ट के सामने खड़े हो, लिफ्ट खुला, एक बंदा एकदम मनहूस सा चेहरा लेके, मतलब ऐसा लगेगा कि अभी रो देगा, ऐसे बंदे से अगर आप मिलते हो तो कैसा फीलिंग आता है? यू विल फील माँ कसम पता नहीं कहाँ से आया है, इसके जिंदगी में क्या दुख है, क्या दर्द है, करेक्ट? So keep this habit of smiling, right? And it is said, और इसका एक और रीजन भी है कि ना, स्माइल करने से खून बढ़ता है, ठीक है? तो लोग बोलते हैं हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खून भी बढ़ता है। एक आसपास में, मतलब you will always prefer to talk to a person who is smiling and he has the energy in his face. You will not talk to someone who is serious, correct? तो whenever you feel कि हाँ ठीक है, एक नेगेटिव थॉट आ रहा है, स्माइल, मतलब कोई भी एक कॉमिक यूज कुछ भी कॉमेडी सीन यूज कर लो, देख लो, इमेजिन कर लो, एंड कीप स्माइलिंग, राइट? एंड once you smile, you also feel happy, the people around you, they will also feel happy, right? So keep smiling, be happy, be happy with whatever you have and wherever you are, correct? एंड शायद ये चीज ना शायद पहली बार नहीं सुना होगा आप लोगों ने, बहुत बार सुना होगा, राइट? बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट इम्प्लीमेंट इट. Start implementing it from today. Come what may, whatever situations you are in, smile, have a smile on your face, right? And the world around you, right, they will definitely change, right? जब हंसते हंसते रहोगे ना, मतलब एक नेगेटिव थॉट का औकात नहीं होगा आपके अंदर आने का, ठीक है? So physical state of being and smile. The third and the most powerful
tool to which can help you to be to to run away from that state of mind is something which I call it as having an attitude of gratitude, right? Having an attitude of gratitude, right? ना हम लोग ना सब मंदिर जाते हैं, राइट? मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, दरगाह जाते हैं, राइट? और घुसते ही बोलते हैं हे भगवान ये करवा दे, ठीक है? तो हम लोग जाते हैं एंड वी आस्क हे भगवान ये करा दे, हे भगवान वो करा दे, और नहीं तो बोलते हैं हे भगवान तूने मेरे को पैदा ही क्यों किया, अच्छा होता मैं पैदा ही नहीं होता, right? So we go to the temples and the churches, the gurudwaras. We do two things. Either we complain, सही नहीं हो रहा, या तो कुछ मांगते हैं, right? We never walk up to a temple or a church or gurudwara or a mosque saying, "Thank you, God, I'm still alive today." We have never ever, thought of, or we never ever have this attitude of gratitude. Thank you बोलना आता नहीं है, right? So you need to have that attitude of gratitude. Now, I have a world map in my home right now. I'm sitting in my hotel room, right? I have a world map in my home. तो एक ड्रीम, जैसे आप लोगों ने 20 ड्रीम लिखा होगा, राइट? तो आई हैव दिस ड्रीम जहाँ पे आई वांटेड टू टेक माय मॉम टू अ वर्ल्ड टूर, ठीक है? तो मैंने मम्मी का भी पासपोर्ट बनवाया, वाइफ का भी है, बेटे का भी है, मेरा भी है, तो वी ऑल हैव पासपोर्ट्स, राइट? एंड बिफोर दिस लॉकडाउन वी वेंट टू टर्की, राइट? तो पहला जो कंट्री जो जहाँ पे जाना था, घूमना था, दैट वाज टर्की। ये सुना था टर्की इज अ कंट्री जो 2 कॉन्टिनेंट के बीच में, राइट? तो जो पुराना टर्की है इट इज इन कौन सा था, इट इज 2 कॉन्टिनेंट के बीच में, एशिया और यूरोप के बीच में। तो आधा टर्की, a part of the Turkey is in Asia and the happening part of Turkey is in Europe, right? तो मेरे को देखना था कि टर्की दिखता कैसा था। तो we went to Turkey, we had a very good time, right? We came back and the next country we wanted to go was Italy, right? तो इटली जाने का बड़ा वो था, बहुत फोटो देखा था, तो डिसाइडेड था इटली जाना है। एंड देन दिस कोरोना वायरस केम एंड इटली का हालत सबने देखा होगा, क्या हालत है इटली का, राइट? तो ना लुकिंग एट दोस न्यूज एंड इमेजेस, मेरे को लगा यार थैंक यू गॉड, I'm blessed that I'm not affected by corona. My family is safe. How many of you wake up in the morning and have this gratitude, thank you God, when the rest of the world is affected by corona and all, we are safe, we are sound, we, at least my source of income is not impacted. There are a lot of people around you, they have lost their jobs. There are a lot of people around you, कंपनी बंद हो गए हैं, राइट? सैलरी नहीं मिल रहा है। आई नो पीपल जिनका लाख लाख रुपए का सैलरी था, आधा सैलरी में लोग काम कर रहे हैं। Most of the people who are working in Jet Airways, right, they're out of job for so long. At least we are there जहाँ पे, at least we're in a position जहाँ पे at least my source of income is not impacted. My family is in a good shape. At least I can feed my family. There are people who are not able to feed their family. How many of you have this gratitude कि यार सब कुछ बढ़िया चल रहा है, and you wake up and you say thank you God? You meet somebody and you smile at that person and you greet him and say how are you? And it is what is missing. And the day you start practicing that this attitude of gratitude that I'm talking about, believe you me, right, half of your pain in your life will be over, right? So I have a small video which I wanted to share to you, right? I believe most of you or none of you have seen it, right? Well, look at this, watch this video, right? Amazing video, right? At least you will learn something out of it that I'm talking about. Just hold on.
So my question to you today is, what do you practice? Is it audible? Is the video audible? Yes, Audio? bhai. Yes, bhai. Okay. So my question to you today is, what do you practice every day? What do you practice? Because what you practice, you will get good at. What do you practice? Do you practice joy in your life? Do you practice peace in your life? Do you practice happiness in your life? Or do you practice a lot of complaining? Because if you complain, you will get very good at it. And you will get so good at it that you will find fault with everything. Even when there's no fault that a layman cannot see, you, being an expert, will see it. What do you practice? Do you practice anger? Because if you practice anger, you will get very good at it. And you will get so good at it that the most trivial you'll think. Trivial thing will make you angry. Like sitting in an airplane and watching the sea across from you somehow looks better than the one you've been given. And that is so unfair of the airlines. What do you practice? Do you practice being worried? Because if you practice being worried, you will get very good at it. And you will get so good at it that everything will worry you, including the buffalo you don't have. So I propose, if this is true that it's a question of practice, then I propose you practice joy. So Maya, what do you practice? That is something which is very important that you need to ask yourself, right? So that is what I was talking about, having an attitude of gratitude, right? Be thankful every day of what you have, right? At least where the world is shut, पूरी दुनिया में ना हाहाकार मचा हुआ है. The companies are laying off people like hell, right? जहाँ पे traditional businesses are not there, वहाँ पे we are in a industry जहाँ पे if I work for 3 to 4 years, right, things can work. At least I'm not saying 100% chance hai you can become successful, right? 1% तो है. At least we have 1% hope that things will change. Let's work on it, right? So start having that and having that attitude of gratitude. Be thankful, right? And believe you me, things will change. But that is what we miss. हम लोग किसी भी कुछ भी करते हैं ना, हम लोग we have this habit of putting finger at someone. ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने नहीं किया, right? We need to stop that, and we need to take complete ownership of your life and complete ownership of what is going on in our life. Then only things can actually start changing for us, right? So the small thing, that all the 3 points that I told, changing a physical state of being, having a smile on your face, or whether it is having an attitude of gratitude, small things, right? But these small things, if you keep doing or practicing every single day, right, you will become a different person altogether, right? So that is what is that will help you to keep your state of mind in a positive way, so that you don't get drained out if something negative comes to you or it hits you, right? Because thoughts आएंगे, positive negative दोनों आएंगे, but if you practice those 3 things, right, things will change, right? And more importantly, right, what I believe is you need to keep yourself busy, right? खुद को busy रखोगे ना तो सब thought ना आएगा ही नहीं.
Now आपका welcome हुआ, right? We told you to write down 20 dreams. I don't know how many of you have written down those 20 dreams, right? And आपको कुछ किताबें पढ़ने दी गई है, right? I don't know whether you are reading those books or not, right? But if you are not doing this, which means you are not doing the business with 100% faith and belief, right? Welcome बोला गया था ना, 100% faith or belief. अगर आपको 20 ड्रीम लिखने बोले था कि 20 ड्रीम आपने नहीं लिखा है तो you don't have 100% faith or belief in the business that it will work, right? If you're not started with the books, which means you don't have 100% faith and belief in the process, right? And the 20 ड्रीम आपको लिखने बोले थे, शायद आपको एक सीक्रेट का वीडियो भी दिया होगा आपके अपलाइन ने, तो वॉच, आई डोंट नो वो भी आपने देखा नहीं देखा है, right? And I don't know how many of you believe in secret, but because I was a non-believer of secret and all those things when I started the business, but today I'm a firm believer of secret, because मेरी लाइफ में आज के डेट में जो भी होता है या जो भी हुआ है, I can say, you know, it is 100% or 120% or 130% is a result of, you know, the subconscious or the unconscious mind, the things which I attract, right? तो जैसे मैंने बोला, अगर आपको मर्सिडीज खरीदना है तो मर्सिडीज वालों के संगत पे रहना पड़ेगा, राइट? तो that is what is, you know, is about, you know, attracting. That is what about, you know, having that secret. So if you don't believe in secret, you know, I have a small video which I wanted to share, right? I don't know कितने लोगों ने देखा है, but again, a small but a very powerful video which, if you start, you know, believing, things will change, right? So just a second. You know, in my first film, when the very famous dialogue which says, if you really want something in your life, you send that message out into the universe and it all happens. You know, she, I think, had read this book called The Secret. I was reading this book called The Secret. जब मैंने Secret पढ़ी, I can tell you something very amazing. पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि लाइफ में मैंने जो भी किया है, I did according to the book only. The girls are screaming your name. You're the new pin-up boy. And in 6 months, you're on my list of India's most desirable. So what's going on in your mind right now? It's amazing. I have absolutely no time to pause and take a look at the amazing things happening around me. Everything's just happening so fast. Boom, boom, boom. You must have written a dream script for yourself for your success as a star. Has it superseded that script? It has. I'll tell you a funny story. For my 23rd birthday, my sister, instead of candles on my cake, had made these small pictures, and she had morphed my face onto posters of Yash Raj films. Shah Rukh sir's face was removed and my face was put on a poster of Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, and boom, and you know, she, I think, had read this book called The Secret. That's right. Yeah, and the power of positive thinking. And so I took those pictures of the cake and I pinned them up in my room. And lo and behold, it came true. जब मैंने Secret पढ़ी, I can tell you something very amazing. पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि लाइफ में मैंने जो भी किया है, I did according to the book only. सिर्फ 1-2 एवेन्यूज में, क्योंकि मैं भी इंसान, you know, mistakes are a part of life. तो 1-2 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में मैं सीक्रेट को अप्लाई नहीं करती थी, और जब से मैंने वो भी शुरू किया है, I think I'm a very happy person. In a way, you know, God has blessed me, and I'm most of the times, I'm not like inhuman, but most of the times I'm happy. So you must follow that. There was this one time, I was driving back from Yash Raj Studios and I got the news Adi told me, and I was driving back and I couldn't drive anymore because I was crying. I was so happy, I was crying. So I stopped the car and I pulled over and I called my mother and I told her that I got this film. And you know what my mom told me? There's this turtle that used to be there in my living room. I think it's some feng shui thing. You just open the turtle and you put like a wish inside that turtle and you shut it. And when your wish comes true, you take it out. So there's she never told me about this. But then she came down after she heard that I've got the film. She opened that and she showed it to me and she'd written it there. I hope my daughter stars in a Yash Raj film. I swear. It's unbelievable.
So I think somewhere she always wanted me to be an actress. What are you saying? She said that she'd written this long ago. Like one thing for my brother, one thing for me. Has the brothers thing come true as well? And you know, when I auditioned for this film, I was reading this book called The Secret. Oh, The Secrets. And it was just, it said something like, if you keep thinking about it, it's going to happen. Positive thinking, yeah. Yeah. When a film starts, the logo of the film comes, Yeah. Yash Yash Raj. Raj. I was watching that logo the whole time. It's just I used to keep watching that again and again. That, So when the film started and that played first, I was like, wow, this is actually happening. Shah Rukh Khan and then introducing Anushka Sharma. I was like, oh God. You know, in my first film, when the very famous dialogue which says, if you really want something in your life, you send that message out into the universe and it all happens. So I think it all just automatically fell into place. One point it felt like a dream, because there was this phone call that I got, and I come to Bombay and I meet Farah. That itself was like, oh my God. And then she offers me a film with Shah Rukh, and she says, if you're really good, I'll have to screen test you, I'll have to audition. If you're really good, I'll cast you opposite Shah Rukh. If you're not, I'll have to cast you opposite someone else. I can't tell you who that actor is. So I remember going to Shah Rukh's house and meeting him, and then Om Shanti Om happened. All the singing and dancing and making dad dance, I mean, the family must have said, Frida is surely going to be a star, didn't they? In a way, I think my mum, more than my dad, saw it coming. I wouldn't say a star, but I would say just an actor, a working actor. You start preparing in some way. Yeah. I never went to an acting school. I just went out there just watching films, reading up stuff about people, actors, you just, autobiographical stuff. I think you did other things too. Like, what did my sister tell you? Preparing for the future. Did you want to watch? Okay. You know what? Frida loves standing in front of the mirror and pretending she was receiving the Oscar and asking herself questions and answering them. It's funny because one day she was doing that and she was standing in front of the mirror and I happened to walk in and Frida was really embarrassed. And, she was like, why did you come in? And I'm like, I was just laughing. It was funny. But she's practiced her Oscar speeches and she's received awards and, given her thank you speeches all in front of the mirror, even before all of this happened. So embarrassing. That is the power of dreams. Yeah. And I want you to remember, everything you imagine is possible. It's out there. All you have to do is go and get it. She imagined it and she made it happen. Okay. So understood what I was talking. Having a positive state of mind, believe in the secret, and keep having that positive frame of mind, right? So that is all that I was talking about, having the first key of the three key combination, having a positive state of mind, right? So to have a positive state of mind, you need to be aware of the thoughts coming in, and once you become aware, you need to practice three things: state of physical being, second, have a smile, third, have an attitude of gratitude, and keep thinking positive and keep talking or keep having that positive affirmations around you, right? So that is all about the first key that I was talking about since till now. The second important tool, or the second key of the three key combination, is something we call it as POA, or the power of association, basically, right? Now, all of you are signed up in Zoom, so you don't know what is POA, right? Now, POA, or power of association, is something where before Corona, so we were in basic before Corona, where IC in Corona, and we're expecting to go to AC after Corona, right?
So before Corona, BC, what we used to do was we used to meet in a particular place, that's in central Delhi, right? So we used to shake hands, we used to hug each other, we used to talk, we used to do everything, right? So there was a place in central Delhi where all of us, some 500, 600 people, we used to meet every single day in a particular location, right? We used to talk to each other, we used to do activities together, and we used to do everything together in that particular place. So that is called POA, where everybody with a similar mindset, similar goal, we used to come together, we used to work together and make things happen, right? So now that since you are signed up in this Corona time, right, we will be doing POA virtually through Zooms and all, right? So you will be having POA on Zooms, and soon after this lockdown thing is over, we will do physical POA. We will starting physical POA as well. So never ever miss any POA, right? Because POA is a place, right? जहाँ पे you will meet people with similar mindset. You will meet people with similar kind of a goals or dreams. You will see people or listen to people talking the same language, right? So जैसे बोला कि अगर नेगेटिव लोगों से मिलते हो तो हैव अ सोशल डिस्टेंसिंग, जो मैंने आपको बताया, तो हैव 2 मीटर का डिस्टेंस बना के चलो, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू पीओए, राइट, इट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट? तो पीओए का ऑरा अलग होता है, बिकॉज एवरीबडी इज पॉजिटिव, एवरीबडी टॉक्स अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, right? And you know, as a group, as an individual, you feel uplifted, right? So never ever miss any POA, right? So whether it is physical POA or a virtual POA, right? Now POA doesn't mean coming in a group and talking to people and sharing knowledge. POA का मतलब वही नहीं होता, right? Whenever we used to, एक कोई भी अच्छा मूवी निकलता था, जैसे आई स्टिल रिमेम्बर बिफोर दिस लॉकडाउन, मेड इन चाइना was released, right? It was a good movie. So I still remember that we have booked the entire PVR in Anupam PVR जो था वहाँ पे, तब पूरा का पूरा ऑडी we have booked. So entire around 350 people we went together and we had a blast. मतलब उसी के अंदर मूवी तो चल रहा था अपना, सब कुछ भी चल रहा था, right? So we go to movies together, we go for outings together. Right now I'm sitting in a hotel in Noida. We are having a 5-star training where my team, my people are there. They're having the party in the lawn. I'm taking this session. So whether it is party, whether it is fun, we do it together, right? So wherever your uplines, right, will tell you to come at whatever time, be there. Don't miss it, right? Because I am a product of POA, right? So there are a lot of things that you will learn in the business, all the technicalities. But मेरा जो major जो learning था, what I've learned the most is when I have spent my maximum time with my upline, all the informal time. रात को 1 बजे 2 बजे I used to sit with my upline in a chai ki tapri in Saket, and we used to spend hours talking. I don't know what we used to talk. We used to talk everything, right? So majority of my learning came from an informal time with my uplines, right? So tomorrow, when you start going to POA and start working, ensure that you spend your maximum time with your working uplines. Ensure that you don't miss any POA. You don't miss any Sunday system. I believe कल सबने Sunday system देखा होगा, सुना होगा, right? VP Kavita, amazing, right? Straightforward from the heart, right? So don't miss any Sunday system. Don't miss any VSELs. VSEL is basically a training module which happens, right? Don't miss any modules. We have events. दो साल में 2 बार event होता है. एक होता है VCon जो QNet का होता है, कंपनी का होता है. एक होता है DWT जो हमारा event होता है, right? And normally both these events happens outside India, right? Make sure you perform, you do well, you make money, and you go outside. We have fun. We learn things, and we do a lot of things together, right? Don't miss any training. Don't miss any camps. Don't miss any VSELs. Otherwise, you will पीछे रह जाओगे, right? To find 5.5 years today, I have not missed a single system till date. 5.5 years, I have never missed a single VSEL. 5.5 years, still today, right?
Even though if I am an upline to a lot of people, but still today I stay grounded, I stay humble, and I'm connected to my upline, and whatever they say, it is a command for me, right? So you need to be in that zone, right? Secondly, all of you have your 108s, right? Create kiya hoga, banaya hoga. Make sure you don't sleep or doze off without updating your 108 every single day. That 108 is not only meant for you to just share your learnings. आप लोगों को बोला होगा कि ना बुक पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, देखो 108 में टेकअवेज डालो. The 108 is not only meant, or it's created to share your takeaways. It is meant to even share your feelings, right? When I started, I was alone in Delhi. There was no upline. और मैंने जब अकेले काम करना स्टार्ट किया, जब 5-7 लोग 10 लोग का टीम साइज बना, आई स्टार्टेड वॉमिटिंग इन माय 108. मैं रोने लगा, उल्टियां करने लगा. देन प्राणी भाई ही केम टू दिल्ली जस्ट टू सपोर्ट मी. सो आप पूरे दिन में आपने जो भी किया, व्हाटएवर यू हैव डन फॉर द एंटायर डे, put it in 108. 108 is the first mode of communication to your upline, right? So it is a tool. 108 is a tool where you can communicate directly to your upline. You put something in a 108 and somebody is there or will be there to respond to you or reply to you, right? So पूरे दिन में जो भी किया डालो 108 पे, नहीं किया वो भी डालो. आज मैंने काम नहीं किया बिकॉज ऑफ दिस रीजन, राइट? तबीयत खराब है 108 पे डालो. पीपल इन भोपाल, राइट? भोपाल में सारे डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर संकेत, डॉक्टर दिलीप, सारे डॉक्टर लोग हैं. इट्स विल बी, अगर तबीयत खराब है, लूज मोशन है, 108 पे डालो, यू विल गेट मेडिसिन एज वेल, राइट? सो इट इज नॉट ओनली मेंट फॉर कंप्लेनिंग, इट इज नॉट ओनली मेंट कि बुक पढ़ा टेक अवे डाला. इट इज मेंट टू एक्चुअली कम्युनिकेट टू योर अपलाइन, करेक्ट? तो जो भी कर रहे हो, वट एवर यू फील लाइक सुमन भाई ने ना पता नहीं क्या ही बोला था, मजा नहीं आया, put it in a 108, right? Whatever you do, whatever you feel like, put it in a 108. Still today, I put everything in my 108. I update my 108 before I go to bed, right? So my upline knows कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या किया, मैं कहाँ गया, क्या किया, सब कुछ पता है. Even when I go for shopping, right, I take the clicks of, जैसे last week we went to Emporio, we bought some shoes and all those things. I click the photos and I put it in my 108. As a team, 15 लोग हम लोग गए थे शॉपिंग करने. इतने लोगों ने गुची लिया, इतने लोगों ने अरमानी लिया, इतने लोगों ने ये लिया, फोटो खींचा, पूरा ग्रुप पे डाला. So it is not only meant only for business talk, right? It is you, because communication is like, we are into net marketing, and net marketing means dealing with people, and dealing with people means can only happen when you have a good relation with people, and good relation can only happen when you have a good and effective communication with everybody around you, right? So communication is the basis of creating a relationship or foundation of a relationship. So the communication has to be good, right? And 108 is the first tool or the first technique to create that communication, right? So update your 108s and put everything, share everything in a 108, right? Don't feel whether I can share it with the upline or not, right? आज के लिए मेरा अपलाइन मेरे सब कुछ है, राइट? माँ बाप भाई बहन सब अपलाइन है, राइट? सो व्हाटएवर आई फील लाइक आई पुट इन माय 108, राइट? आज मेरे को काम नहीं करना, सोना है, मैं वो भी डालता हूँ 108 पे, राइट? टुडे आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई विल नॉट वर्क, 108. Whatever it is, put it in a 108, right? Second, जैसे मैंने बोला, communication. You need to be in tight communication with your upline, right? Because मैंने बोला ना कि मतलब मर्सिडीज खरीदा तो मर्सिडीज वालों के साथ घूमना पड़ेगा, राइट? तो सुना होगा आप लोगों ने, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, राइट? So if you want to be in a positive state of mind every single time, you need to be in touch with your upline 24/7, because your uplines will be always in a positive state of mind. Your uplines are always excited. Your uplines are crazy, right? And if you want to be where your upline is, you need to be in tight communication with them. You need to have that same mindset.
You need to copy that mindset. और वो तभी हो पाएगा when you are in right communication or strong communication with your upline, right? So ensure that you are in tight communication, right? OneZuit is a tool, but I would prefer, or normally I tell people, avoid typing most of the times, right? Whenever you feel something good, bad, ugly, pick up the call and phone and start dialing. Dial people, call up people. ठीक है, क्योंकि no, a single word or a single phrase or a statement, अब मैसेज में जैसे बोलते हो बोलोगे और फोन करके जैसे बात करो बोलोगे, it will have two different emotions. A particular sentence or a word, right, when you talk, right, it creates a different meaning altogether, right? So don't always मतलब मैं देख मतलब मेरा बर्थडे था 9th of September को, किसी ने लिखा है HBD, मैं बोला क्या है, फिर मैंने पूछा व्हाट इज HBD, बोला हैप्पी बर्थडे भाई, मतलब पूरा लिखना बे, ठीक है? तो लोग ना मैं बैठा था सीसीडी लाउंज में, तो आई वाज, तो फ्राइडे था तो काउंटर चल रहा था, तो आई वाज सिटिंग विद अ कैलकुलेटर माय लैपटॉप, तो किसी ने पीछे से बोला भाई कैल्सी देना, मैं कैल्सी वो क्या है भाई, कैल्सी पड़ा है ना आपके पास, कैल्सी देना, मतलब पूरा बोल बे, बोला भाई कैलकुलेटर तो, मतलब पूरा बोलने में शर्म आता है तुमको, मैंने कैलकुलेटर उठा के फिर उसको दिया, राइट? तो कम्युनिकेशन तो ना व्हाट्सएप पे मैसेज पे ना आजकल कम्युनिकेशन ऐसा हो गया, राइट? सो डोंट जो ना कुछ ही बात करना है ना, खाली ना मैसेज करके मत छोड़ो, राइट? ऑफ कोर्स इट इज द फर्स्ट टूल, इट इज अ टूल, बट व्हाट आई प्रेफर फोन उठा के बात करना, राइट? ना पुराने जमाने में ना लोगों को देखना, आप लोग देखना, उनको ना लैंडलाइन नंबर और फोन नंबर तो याद रहते थे. Why? Because they had a landline number and they should dial टक 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 टक. आज के डेट में क्या है, if I have to call आशुतोष, ASH डाला, नाम आ गया, डायल किया, भाई कैसा है, so we don't remember the numbers, right? And whenever you write something or type something, you cannot pass on that emotion, right? Although आप इमोजी डाल दो हंसते हुए, रोते हुए, कुछ भी करते हुए, but the way, the emotions that you can pass on while talking, you cannot pass on the same emotion when you are typing, right? So talk to your uplines, right? Talk to your uplines, have a strong communication, have a strong bond. तभी जाके you can actually duplicate that mindset, right? So meet your uplines physically, have a perfect communication, and don't miss POAs, right? So the second tool of the second element of the three key combination of is communication and POA. POA जाना नहीं है, don't miss any system, any welcome you can skip once or twice, but you need to attend welcome till the time you don't learn how to take a welcome. ये मेरे को भी बताया गया था, सिखाया गया था. Attend a particular training till a time that you don't start taking it. जब तक आप लेना नहीं शुरू कर लेते तब तक सीखते रहो, right? So don't miss any VSELs, don't miss any trainings, don't miss any systems, don't miss any VSELs, trainings, events. You cannot simply miss, right? And communication has to be very 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 strong, right? And अगर मैं communication बात करूं, one thing which you need to take care is we should not talk anything down. We should not talk anything negative down, right? Let's say tomorrow, right, you have a team member, you have a downline, right? जाके ना उसको ना उसको गलत नेगेटिव आप किसी से नेगेटिव हो, जाके उससे बोलोगे ना, वही बेचारा नेगेटिव हो जाएगा, right? So whenever you feel negative or something, go up, go to your upline. And whenever you are happy about something, you are excited about something, go down. So all negative up, all negative up, all positive down, right? जो आपके जब में कचरा है, कूड़ा है, जो भी है, अपलाइन वो ऊपर वाला है, वो देख लेगा. If you are happy about something, down, correct? कुछ भी हो, आजू बाजू में जाकर ना नेगेटिव बातें मत करना. मैंने ना यूट्यूब में वीडियो देखा, तूने देखा? बोले कौन सा? अरे वो
कंपनी बंद हो रही है। बोला अच्छा कंपनी बंद हो रही है, तो यू नो पता नहीं उस बंदे ने देखा भी नहीं होगा, राइट। बट बोले और आपका बात सुन के अब एक बात सोचो ना, अब यूट्यूब और गूगल में इतने सारे नेगेटिव आपने देखा होगा, राइट ना। मेरे को तो बीच बीच में लगता है कि वी आर द ओनली पर्सन और वी आर द ओनली पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। व्हाई? क्योंकि देयर समथिंग कॉल्ड एज ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप एक लिंक को जितने बार क्लिक करोगे ऊपर चढ़ता चला जाएगा। नाउ QNet इंडिया हैज मोर देन 50 लाख पीपल, राइट। 50 लाख लोग, राइट। अगर एक लिंक को दो बार अगर क्लिक करेंगे, बाहर वालों का जरूरत ही नहीं है हम लोग के बारे में नेगेटिव बोलने का। हम लोग खुद ही इतने लिंक को प्रमोट कर देते हैं कि बाहर वाले लोग को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। सो नो नेगेटिव डाउन होना इज लाइक कैंसर, राइट। इट शुड बी ऑलवेज अप एंड ऑल पॉजिटिव डाउन, ठीक है। सो don't miss any POAs, systems and all, and have a strong communication with your upline, right? And after having a positive state of mind and POA and communication, the third element of the 3 key combination is something called as activity, right? तो मैंने सारा कुछ ले लिया, सारा ज्ञान ले लिया, सब कुछ हो गया, मैंने POA अटेंड किया, मैंने अपने साथ टच में हूँ, मैं पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, मैं सब कुछ हूँ, बट मैं काम नहीं कर रहा। पैसे कमाओगे? तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, मैं चल रहा हूँ, मैं हंस भी रहा हूँ, राइट। मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन मैं काम नहीं कर रहा, तो पैसे कहाँ से कमाओगे, राइट। सो द थर्ड की ऑफ द 3 की कॉम्बिनेशन इज एक्टिविटी, राइट। सो इफ यू डोंट डू एक्टिविटी, नथिंग विल हैपन। वो ज्ञान धारा का धारा रह जाएगा। तो आप क्या बन जाओगे? यू विल बिकम प्रोफेसर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, right? You read your books, you go through the links, you go to VSales, you attend everything, and if you don't do anything of that learning, you become professor of network marketing. You will teach people network marketing ऐसा होता है, तो ना आप पढ़ाने लगोगे, right? आपने देखा ना कॉलेज में, right? I've done MBA, right? So there's a subject called strategic marketing. So there was this professor who used to teach us, Coca-Cola ने क्या strategy बनाया, राइट। जेन को हटा के जेन एस्टोलो लेके आए, वो क्या स्ट्रेटेजी था। स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट पढ़ाते थे मेरे को, राइट। बट उसने कभी ना, उस बंदे ने, उस प्रोफेसर ने, ही वाज अ वेरी गुड टीचर, राइट, बट कभी ना प्रैक्टिकली कभी किया नहीं है। तो ही हैज ऑल द थ्योरेटिकल नॉलेज एंड दैट्स द रीजन ही वाज अ प्रोफेसर। और वो इतना कुछ जानने के बाद अगर कहीं पे इंप्लीमेंट कर लिए होते तो शायद उस नॉलेज से ही वुड हैव बीन अ गुड बिजनेसमैन, राइट। बट वो ज्ञान बांटते चले गए, प्रोफेसर रह गए, और उनसे ज्ञान लेके लोग बिजनेसमैन बन गए, करेक्ट। सो वी आर नॉट हियर टू बी प्रोफेसर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, वी आर हियर टू मेक मनी out of this network marketing professional, right? So your IM's sessions will end this Thursday, right? Make sure from Friday onwards you go full on with your activities. और एक्टिविटी क्या करना नहीं करना है वो आपको वर्किंग अपलाइन आपको बताएगा, राइट। सो आई हैव अ स्मॉल स्टोरी बिफोर वी वाइंड अप, राइट। नाउ देयर वाज दिस कपल, राइट, एक हस्बैंड वाइफ थे, तो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, राइट। द हस्बैंड यूज्ड टू लव द वाइफ यूज्ड टू लव द हस्बैंड, एकदम लैला मजनू जैसा प्यार करते थे, एंड दे वर लिविंग अ गुड लाइफ, राइट। 6 years went by, right? Both of them were in a very good relation, but they were not able to conceive. बच्चा नहीं हो रहा था। तो ऑन द 7th ईयर जो सास थी वो आई और बहू को बोली, बहू अगर इस साल बच्चा नहीं हुआ ना, डिवोर्स करवा दूंगी। तो बहू गॉट टेंस्ड, तो मतलब क्या करे। और पड़ा 6 साल में दे हैव मतलब जिसने जहां बोला वहां गए, डॉक्टर को देखा, सब कुछ किया, लेकिन दे वर नॉट एबल टू कंसीव, राइट। नाउ जब सास ने धमकी दिया तो the wife got tensed, she was sitting in the home. Husband आया ऑफिस से, बोला क्या हुआ डार्लिंग, why are you so sad? बोला mother-in-law came and धमकी दिया कि अगर इस साल बच्चा नहीं हुआ तो
डिवोर्स करा देंगे। तो बोथ ऑफ देम गॉट टेंस्ड एंड दे सोच लगे क्या करें। एंड द नेक्स्ट डे द हस्बैंड वेंट टू ऑफिस। उसने देखा उसका एक दोस्त है, वो ना सबको लड्डू बांट रहा है। तो लड्डू बांटते बांटते उसके पास आया, तो उसने लड्डू लिया, बोला क्या हुआ? बोला बेटा हुआ। बोला कैसे हुआ? बोला वी वेंट टू बाबा। बोला क्या, मेरे को ही बता। तो मैं भी, तू तो जानता है मेरा भी 6 साल से है ना, वी आर नॉट एबल टू कंसीव। तूने ऐसा क्या किया कि तेरा बच्चा हो गया? तो बोला देख तेरे को, तो उसने बोला देख तेरे को तो पता है 6 साल से हम लोग भी झूंझ रहे थे, बट अल्टीमेटली एक बाबा जी मिले, राइट, उनके हेल्प से वी गॉट दिस किड। बोला तेरे मेरे को ही बता, मेरे घर में बड़ा कलेश हो गया है, मेरी माँ आके हमको डिवोर्स का बता रही है। तो उसने बोला कि ये नंबर ले, बात कर और जाके मिल, हो जाएगा। ठीक है। तो दिस गाय ही कॉल्ड अप दैट नंबर। एक फोन रिंग हुआ, एक बंदा उठाया, तो बोला, जिसने बोला माय नेम इज सो एंड सो एंड आई एम मैरिड फॉर 6-7 years एंड वी आर नॉट एबल टू कंसीव, सो आई वांट टू मीट समवन हु कैन हेल्प अस। तो उसने बोला ठीक है, आप कल आ जाओ 9 बजे। ठीक है। तो एड्रेस दिया, गुड़गांव में एक एड्रेस था, तो वहाँ पे आ जाना था। तो बोला 9 बजे आ जाओ। तो उस बंदे ने क्या किया, ऑफिस का छुट्टी लिया, घर गया, घर में वाइफ को बताया कि टुमारो वी नीड टू गो टू दिस प्लेस। तो दिल्ली से सुबह 7 बजे निकले एंड दे रीच गुड़गांव एट अराउंड 8:30। और एक आश्रम में गए, वहाँ पे पहले उनको बैठाया, उनका पूरा हिस्ट्री लिया, और फिर आधे घंटे के बाद जो बाबा थे, जो सबसे ऊपर वाले जो बाबा थे, उनसे मिलवाया। तो दोनों हस्बैंड वाइफ नीचे बैठे। बाबा बोला बताओ बच्चा क्या दिक्कत है? तो बच्चे बोले 7 साल हो गया बाबा जी, बच्चे नहीं हो रहे। तो बोले क्या क्या दिक्कत है? तो उसने बोला कि ये सब कुछ कराया, ये कोई लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो बाबा ने बोला कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है। तो बाबा जी के जिस चेयर में बाबा जी बैठे थे, उसके बगल में एक फ्रूट का बास्केट रखा हुआ था। तो वहां से उन्होंने एक एप्पल लिया और कुछ तो ऐसे बोला, ऐसे कुछ तो मंत्र फूका, बोला बच्चे ये लो एप्पल, घर जाओ, रात को खाना खाओ, एप्पल को आधा काटना, आधा तुम खाना और सो जाना। बोला ठीक है। तो बंदे ने पूछा रिजल्ट मिलेगा बाबा जी? बोला 100%। तो दे वेंट होम, डिनर किया, एप्पल को काटा, आधा हस्बैंड ने खाया, आधा वाइफ ने खाया, सो गए। एंड 3 months वेंट बाय, बच्चा नहीं हुआ। तो उन्हें थोड़ा गुस्सा सा आया, वरना बाबा जी ने बेवकूफ बनाया। आफ्टर 3 months दे कॉल्ड अप द आश्रम एंड दे सेड कि मिलना है बाबा से। तो बोला ठीक है, इस फलान तारीख को इतने बजे आ जाना। तो अगेन 9 o'clock मॉर्निंग दे वेंट। तो लोग बाबा के पास गए, तो उन्होंने बोला बाबा जी आपने एप्पल दिया था, कुछ हुआ ही नहीं उसका, क्या सीन है? बेवकूफ बना रहे हो क्या आप? तो बोला अरे नहीं बच्चा, ऐसा तो कुछ आज तक तो ऐसा मेरे से कभी हुआ नहीं है, ये मिस कैसे हो गया? तो बोला आप बताओ कैसे मिस हो गया, हमने तो पूरा प्रोसेस फॉलो किया, बट हुआ क्यों नहीं? तो बोला कोई दिक्कत नहीं, इस बार दोबारा ट्राई करो, इस बार तो हो ही जाएगा कंफर्म। तो अगेन उसका एक वो फ्रूट्स का जो बास्केट था, वहां से इस बार अमरूद लिया, गुआवा, फिर कुछ मंत्र ऐसे फूका और बोला ये लो, घर जाओ, डिनर के बाद आधा तुम खाना, आधा वाइफ को खिलाना और सो जाना। बोला ठीक है। तो दे वेंट होम, दे हैड डिनर, अमरूद काटा, आधा हस्बैंड ने खाया, आधा वाइफ ने खाया और सो गए। 2.5 months वेंट बाय, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो दिस टाइम हस्बैंड एंड वाइफ बोथ ऑफ देम वर वेरी फ्यूरियस, बहुत गुस्से में थे। तो दे कॉल्ड अप द आश्रम एंड सेड कि बाबा से मिलना है अर्जेंटली। तो बोला कल आ जाइए। तो दे वेंट। तो एकदम ना गुस्से में एकदम हस्बैंड वाइफ दोनों अंदर गए आश्रम के, बाबा जी बैठे थे। बोले आप ढोंगी हो, आपसे कुछ ना होने वाला, आपने बेवकूफ बनाया, आपने ये किया, आपने वो किया। और आजू बाजू में 2-4 लोग और बैठे थे। तो बाबा जी ने बोला शांत हो जाओ, बात तो करो। बोला बात ही नहीं करना, आपने बेवकूफ बनाया, पहले एप्पल दिया, फिर अमरूद दिया, ऐसे थोड़ी बच्चे पैदा होते हैं, ये वो। तो बोला बैठो तो सही, बात तो करे। तो बोले तो बैठे दोनों। बोला हाँ आप बताओ। बोला आप क्या बताए? आपने जैसे बोला था वैसे किया? तो बाबा जी ने बोला डिटेल में बताओ तुमने क्या किया। बोले यहाँ से गए घर, फिर शॉपिंग वॉपिंग किया, फिर रात को जैसे आपने बोला, रात को फिर हम लोगों ने कढ़ी चावल बनाया था, डिनर किया। उसके बाद
अमरूद को हाफ काटा, आधा मैंने खाया, आधा मैंने वाइफ को खिलाया, सो गए। बोले नहीं डिटेल में बताओ, डिनर के बाद से बताओ, डिनर के बाद क्या किया। बोले कड़ी चावल बना था, प्लेट में सर्व किया, कड़ी चावल इसने खाया, कड़ी चावल मैंने खाया, फिर प्लेट्स धोए, फिर अमरूद लिया, उसको आधा काटा, आधा मैंने खाया, आधा वाइफ को खिलाया, फिर सो गए। बोले नहीं डिनर खाने के बाद क्या किया वो मेरे को डिटेल में बताओ। बोले डिनर खाया, खाने के बाद प्लेट्स धोए, फिर डाइनिंग रूम में आए, अमरूद को काटा चाकू से, आधा मैंने खाया, आधा इसने खाया, फिर हम सो गए। बोले नहीं वो अमरूद खाने से बताओ, अमरूद खाने के बाद बताओ डिटेल में कि क्या किया। अमरूद को लिया, चाकू से काटा, आधा मैंने खाया, आधा वाइफ ने खाया, फिर हम सो गए। बोले नहीं, फिर बोला कि नहीं अमरूद खाने के बाद मेरे को डिटेल बताओ क्या किया। अमरूद को काटा, आधा इसने खाया, आधा मैंने खाया, सो गए। नहीं बोला अमरूद खाने के और सोने के बीच का बताओ ना डिटेल में कि क्या किया। बोले कुछ नहीं किया, एप्पल काटा, आधा अमरूद काटा, आधा इसने खाया, आधा मैंने खाया, सो गए। तो सोने के पहले कुछ नहीं किया। बोले नहीं अमरूद काटा, आधा इसने खाया, आधा मैंने खाया। तो बाबा जी बोले अरे एक्टिविटी नहीं करोगे तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा। So the Baba was right. So he has given the Amrud, he has given all the everything, but activity नहीं हुआ तो result नहीं निकला. Correct. So after this IAM, right, you will have all the knowledge, all the inputs, right. Now after having all those inputs and all, if you don't do your activity, result नहीं निकलेगा, right. तो the result अगर लाना है तो activity करना पड़ेगा, right. So you need to be activity oriented. You need to be an activity oriented person once your IM is over. Okay. So this is what I wanted to share. The 3 key combination, right? Having positive state of mind, be regular to POA, and having effective communication with the upline. And third, is basically focus on activity. So this is what I wanted to share. I hope I have made some sense, and I want you to implement it, right? Implement whatever I've said in a positive state of mind, right? Implement karo, right? The results will come. The results are bound to come. I'm a product of that. I was a firm non-believer of network marketing, but today, I do network marketing. मेरा बेटा है, राइट। कल मेरी वाइफ ने बोला कि स्कूल का फीस देना है, तो फीस कितना था, 34,500 बोला मेरे को। तो मैंने बोला 34,500 बहुत ज़्यादा है, चलो ट्रांसफ़र कर देता हूँ। मतलब 3500 बच्चे के लिए, वो भी जूम पे। पहले जब स्कूल जाता मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि बच्चा स्कूल में रहता था। मेरे बोला जूम पे पढ़ के 34,500 टॉर्चर है। आई ट्रांसफर द मनी एंड राइट। फिर जैसे मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए ना, मेरी वाइफ ने बोला मेरे बेटे को, सुन इतने पैसे दिए हैं, पढ़ना ठीक से। मैंने बोला सुन इतने पैसे दिए हैं, दोस्त बना लेना, पढ़ना बाद में, राइट। सो एनीवेज all our learnings and all has taken us nowhere, right? हम लोग सब कुछ यहीं पे हैं। I am an MBA from University of Wales with more than 8 of experience, but still I am here and talking to you, right? So you're into the right business at the right time with the right company and with the right set of people. All you need to do is have a positive state of mind, be in effective and right communication with your upline, and don't stop doing your activities, right? So thanks a lot, and I hope I've made some sense, and we will keep meeting and we will do wonders, right? Thanks a lot. Thank you very much. Thank you Love so you. much, bhai. Bye.